Good morning, all. I welcome CA Shiv Bhagwan Asawa sir for this seminar and all the participants. Today we have arranged the seminar on project finance. काफी दिनों से ऐसा चल रहा था कि फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट रखना चाहिए. So we thought and we have decided to do this. Now I request CA Pankaj Soni, Chairman of Aurangabad branch, to kindly give the welcome address to the audience. Good morning, everybody. Welcome to this VCM on project finance. Finance is the ultimate important thing. हम सब लोग दौड़ते हैं lifetime उसी चीज के लिए. And MSME sector is the majority sector. Majority of the clients or majority of the businesses, they fall in MSME sector. And MSME sector is always starving for the money for want of expansion, working capital, and the finance to this sector is important to keep it boosting regularly. Further, it happens that the MSME sector does not have the in-house knowledge of this field. Since the scale of operation is not that high, they cannot keep exclusive employees for all the areas. And here the role of the chartered accountants professionals that comes into picture, whereby we can support them as virtual CFOs or in project financing or in other aspects. So to understand the integrities of project finance, we have a very learned speaker, CA Shiv Bhagwan Asawa ji, who also happens to be chairman of Thane branch for the current year. So welcome Asawa ji to this seminar. And as always, we have our co-host CA Sandeep Desara ji, chairman of Ahmednagar branch. Over to you, Praveen. Yes. Now I request CA Sandeep Desara to introduce the Asawa sir. Sandeep ji. Thank you so much, Praveen. It's my immense pleasure to introduce our today's keynote speaker, Shiv Bhagwan Asawa sir. Asawa sir is a fellow chartered accountant of May '94 batch and currently chairman of Thane branch of WRC of ICI. He completed BCom honors from Calcutta University and into practice in financial services since 1997. He has 27 years of post-qualification experience in areas of project appraisal, financial consultancy, raising of funds through debt and equity. He is an out-of-box thinker with distinguished abilities in providing tactical business solutions, arranging funds by way of equity and debt for different clients. He has a proficiency in identifying and adopting emerging trends, valuation and corporate restructuring projects, encompassing development of strategy, solicitation of interest, business valuation, financial analysis, due diligence and negotiations, and documentation activities. He is a keen analyst with exceptional negotiation and relationship management skill and abilities in liaising with banks, financial institutions, regulatory authorities, and other external authorities. He had syndicated more than 5,000 crore. Syndicated more than rupees 5,000 crore for various MSME clients from different banks and financial institutions in last 2 decades. Apart from this professional competency, Shiv Bhagwan ji naam jaise hi hai, क्योंकि in last 2 years we are facing this COVID, and in last two year I had interaction with the Asawa sir. In last 2 years he donated more than of rupees 2 crores fruit juice with the help of Dabur CSR fund, and from that one of the beneficiaries Ahmednagar branch, last year he sent 5,000 fruit juice box for the COVID patient. This year also he arranged around 1.5 lakh masks, out of which again just yesterday only hand over our Kiran Bhandari said 3,000 masks to distribute for these COVID patients and others. So really sir, आप अपने नाम जैसे ही हैं. So it's our really we are really grateful to have you as our guest speaker. Over to you, Praveen. Thank you, Sandeep bhai.
Now I request sir to start the seminar. Audience, what will do? वो मराठी में ऐसा बोलेंगे, असावा असावा तर असा असावा. अगदी बरोबर. सही बात है. Pandemic में ये help is really very grateful toward the society. Participant, what we'll do, we'll have a search session, and later on you can post your questions in the chat box or raise your hand. At the end of the session, we'll take a question and answer. So, sir, over to you. You can Okay. start. Yeah. Thank you, Pankaj Soni, Praveen Bangar, Sandeep Desada ji for your kind words, kind introduction. I am not that great a person. ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है और अपने थ्रू कुछ अच्छा हो जावे, यही अपनी इच्छा रहती है. और आप बिलीव करोगे कि ये जो डाबर के जो जूसेस हमने करीबन 2.5 करोड़ के अपने को मिले थे, वो इसलिए नहीं मिला था कि शिव भगवान का कोई रोल है, मिला इसलिए था कि हमारे सामने प्रीफिक्स ये था. इनफैक्ट आई नो कि लोकल पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र दे वर बिहाइंड डाबर कि हमारे थ्रू दीजिए, एंड डाबर ने बोला नहीं, वी विल गिव इट टू थ्रू सीए बॉडी. एंड फॉर्चुनेटली देयर सीएसआर इंचार्ज वाज फ्रेंड ऑफ माइन. ही सेड, शिव भगवान कैन यू टेक दिस रोल, मैं सीए इंस्टीट्यूट को दे देता हूं, फिर आपको जिसको देना है उसको दीजिए. तो दैट इज द पावर ऑफ प्रीफिक्स सीए. Now, before I go ahead with my screen sharing and presentation, थोड़ा सा मैंने presentation को modify किया है. इसलिए modify किया है कि many of us may be in financial services or may not be financial services. Those who are not into financial services, basically I have observed कि उनको basic चीजें को बहुत सरल सिंपल है. आज का जब सेशन हो जाएगा आपको मालूम पड़ेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सीएमए डेटा बनाना, इट्स ए वेरी इजी जॉब वंस यू नो द टेक्निक्स एंड सारी चीज आपको मालूम है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, बट आफ्टर दिस सेशन यू विल फाइंड दैट यार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, सीएमए डेटा बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या ध्यान देना चाहिए, ये सारे इजी हो जाएगा. एंड देन आपका जो मन का डर है फिनेंशियल सर्विसेज में कैसे जाए, तो आपका वो जाना सहूलियत हो जाएगा. यू कैन इजीली एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ अस इनटू कंप्लायंस प्रैक्टिसेस व्हिच आई से कि डेबिट साइड प्रैक्टिस, बिकॉज आप क्लाइंट के खर्चा कराते हो, क्लाइंट के आउटफ्लो देखते हो, आप टीडीएस भराओगे, जीएसटी भराओगे, इनकम टैक्स भराओगे, ये सारे डेबिट साइड है और आउटफ्लो ऑफ योर क्लाइंट है. तो जनरली क्या होता है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इट सेज कि जब भी कोई ट्रिकी सिचुएशन आया, जैसे पैंडेमिक वाला सिचुएशन आया, तो सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, ऑडिटर को रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल फीस कम कर दो. कई बार आपका प्रोफेशनल फीस आउटस्टैंडिंग रह जाती, ड्यू रह जाती, आपको मिलता ही नहीं है, और प्रोलॉन्ग आउटस्टैंडिंग रह जाती है. लास्ट ईयर के फीस बहुत जनों को अभी तक नहीं आई. मार्च 20 का मैं बोल रहा हूँ, अभी तक मेरे ऑफिस में भी मुझे मालूम है, द पार्टनर हु इज लुकिंग आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, they are facing burden of realizing or recovering professional fees already provided for, GST already paid for. तो इस प्रोजेक्ट फाइनेंस का एक जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ, ये फिनेंशियल सर्विसेज में वन शुड मस्ट एंटर, बिकॉज एक तो आप पैसा क्लाइंट को लाके देते हो, तो क्लाइंट क्या करता है, आपका फीस जनरली वो सबसे पहले पे करता है, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग सम मनी. तो आपके इनफ्लो आप लेके आ रहे हो, ना कि आउटफ्लो. तो क्लाइंट थोड़ा सा खुश रहता है कि भाई चलो अपन इनके फीस, जनरली अपनी फिनेंशियल सर्विसेज के फीस बहुत कम, रेयर चांसेस है इट विल बिकम बैड डेट, एंड यू गेट टाइमली फीस, बिकॉज आप पैसा लाके दे रहे हो, तो क्लाइंट को इतना अखरता नहीं है आपका पेमेंट करने के लिए. नाउ आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ. लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग. आई बिलीव मेरा स्क्रीन विजिबल है. Yes, sir. Yes, sir. PPT दिख रहा है, sir.
Yes. Yes, PPT दिख रहा है ना? तो PPT, Excel, Word, what we will do, we will prepare live demo of how to prepare project finance. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एक्सेल शीट मैं बनाऊंगा वो चाहे 10 लाख का लोन हो, चाहे 10,000 करोड़ का लोन हो, यही एक्सेल शीट आपको बनानी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि जब बड़ी साइज की लोन होगी तो थोड़ा डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी डिटेल्स और देनी पड़ेगी। बट आज के दिन अगर मुद्रा लोन भी है तो बैंक वाला बोलता है कि भाई प्रोजेक्शंस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और DSCR एटलीस्ट 5-6 पेज तो हमको दो। तो इसमें हम देखेंगे हाउ डायनामिक आवर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये मल्टीपर्पज, देखिए मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ डायनामिक एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स। व्हाई इट इज मल्टीपर्पज? कि जो फॉर्मेट में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, दिस कैन बी यूज्ड फॉर different purposes. One is that you are applying bank for any kind of term loan, तो इस तरह का आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप बैंक लोन या इक्विटी डेट कुछ भी करो, इस तरह के प्रोजेक्शंस आपको बना के देने पड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आई डोंट नो वेदर दिस इज प्रिवेलेंट इन औरंगाबाद और अहमदनगर और नियर बाय एरिया, बट इन मुंबई ऑल PSU, अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, कोई बंदा पहली बार कोई प्रोजेक्ट डाल रहा है, तो वो बोलते हैं, बैंक वाले बोलते हैं कि भाई उनके एमपैनल टीवी फर्म से आप इसको इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बना के लाओ। तो मेनी ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाने वाले फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। एंड आपको इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट, इस प्रोजेक्ट जो स्प्रेडशीट मैं बनाऊंगा उसके द्वारा आप अप्रेजल करोगे प्रोजेक्ट का, तो यू कैन प्रिपेयर economic viability report. You get good amount of fees from the bank, though it will be paid through client account. But all greenfield project, particularly in PSU bank, to be vetted by TEB consultant who can be chartered accountant. And I can say chartered accountant are most eligible to do economic viability report. Now, so third purpose is that, see, probably you are into practice, maybe CA practice, but your next generation may want to set up certain kind of other business. आजकल तो आपको मालूम है कि IT का रेवोल्यूशन है, ऐप बेस्ड फिनटेक कंपनियां, दुनिया भर की कंपनियां आ रही है, नए नए बिजनेस, एंड यंगर जनरेशन इज मोर इंक्लाइन टू अदर प्रोजेक्ट। बट आपके पास कोई कंसल्टेंट आया कि भाई इस तरह का प्रोजेक्ट डालो देसाड़ा जी, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, या आपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई सुझाव दिया कि भाई टेक्सटाइल में ये यूनिट डालो, कि केमिकल में ये यूनिट डालो, कि फार्मा में ये यूनिट डालो। एंड वो जो कंसल्टेंट होता है वो पेपर पे लिख के देता है, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा, इतना सेल्स होगा, एंड उसके दौरान आपको इतनी प्रॉफिट होगी, एंड ये प्रोजेक्ट अच्छा है डेसाड़ा जी आप लगा दीजिए। बट मेरा सुझाव ये है, अगर आपको ये प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स बनाना आ गया, तो आप अगर बनाओगे एक्सेल शीट में, उसने जो डिटेल्स दिया है एक्सेल शीट में आप डालिए, तो आपको स्वतः आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट रियली जो कंसल्टेंट बोल रहा है उतना ही वायबल, उतना ही सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर करेंगे, वेदर दैट प्रोजेक्ट कैन फेस बैड वेदर, यू कैन डू प्रोजेक्ट अप्रेजल थ्रू सेम शीट। नाउ आई हैव सेड कि माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट विल बी डायनामिक। डायनामिक इन द सेंस, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका एक्सेल शीट एक बार बन गया है, उसके बाद आप मल्टीपल चेंज कीजिए, चाहे I will do also multiple changes while preparing project report, but multiple change on a click of a button, entire project report format will automatically get updated on an Excel sheet, and it will hardly take 10 seconds to do multiple changes, and still the project will be so dynamic project financials कि आपके कैश फ्लो से लेके बैलेंस शीट से लेके एवरीथिंग विल गेट डन। एंड उसके दौरान क्या होता है, जब टीबी रिपोर्ट बनाना पड़ता है तो आपको एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करनी पड़ती है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट बनाते टाइम। उस टाइम क्या होता है कि आपको जो की फैक्टर है, चाहे सेलिंग प्राइस की फैक्टर हो, चाहे रॉ मटेरियल की फैक्टर हो, पावर एंड फ्यूल की फैक्टर हो, अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग की फैक्टर है। उसमें बैंक आपको रिक्वेस्ट करता है कि भाई सेलिंग प्राइस अगर की फैक्टर है, हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो आप सेलिंग प्राइस अगर 2% कम कर देंगे तो व्हाट विल द वेरियस फाइनेंशियल पैरामीटर्स दैट प्रोजेक्ट विल अंडरगो। या सपोज रॉ मटेरियल स्केर्सिटी है, तो रॉ मटेरियल प्राइस को अगर मैंने 5% बढ़ा दिया तो ये प्रोजेक्ट की क्या हालत होगी।
या पावर एंड फ्यूल किसी का इसमें की फैक्टर है, या आप मल्टीपल कर सकते हैं, परचेज प्राइस 2% बढ़ा दिया, सेल प्राइस 2% कम कर दिया, तो दिस कैन बी डन इन ए क्लिक ऑफ ए बटन. एवरीथिंग विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड एंड यू विल कम आउट विथ different sort of financial parameter on few minutes, and you can self analyze yourself कि this kind of project is viable or not. Viable in the sense bankers will want कि कल अगर situation थोड़ा worst हो गया, bad weather हो गया, whether the proposal for which bank has been approached to sanction term loan withstand the bad weather condition. Now let me start with live preparation of project financials. I will take dummy data. I have prepared one dummy data for this presentation, and based on dummy data we will prepare live project report, and project report बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे. Of course at the end, if time permits, we will have question answer session also, and you can put in through chat box. Maybe moderator will pick up, or you can unmute yourself at the end of the session and you can raise your hand and ask the question. तो प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स हम बनाएंगे 13 स्टेप, 1 by 1 स्टेप से अपन जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन आवर गाइडेंस पीपीटी में जो दिया हुआ है उसी तरह से हम लाइव एक्सेल पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम थोड़ा स्क्रीन छोटा दिखे, डोंट वरी, जब एक्सेल पे जाऊंगा तो आपको पूरा स्क्रीन दिखेगा. दिस आर ओनली स्टेप्स, तो नथिंग टू वरी. तो प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स बनाने के लिए पहला स्टेप है कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेबल एक्सेप्ट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कंटिजेंसी टेबल. पहला स्टेप में अपने को 3 टेबल बनाने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में खाली मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल आपको एक बार छोड़ देना है. अभी अपन देखते हैं डमी डेटा हमने क्या लिया, जो एजम्पशन किया है. अपना डमी डेटा है सोनी देसाडा एमएच प्राइवेट लिमिटेड, प्रोमोटेड बाय मिस्टर सोनी एंड मिस्टर देसाडा of Aurangabad, decided to set up manufacturing facility to manufacture product A and B at MIDC Aurangabad as per following details. तो क्या डिटेल्स है, ये सब एजम्पशन है, कोई एक्चुअल प्रोजेक्ट से कोई रिलेवेंट नहीं है, मैंने एज्यूम किया है. वर्ड फाइल शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ, वर्ड फाइल शेयर कर रहा हूँ सर. इसमें प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, एजम्पशंस है, एंड बाद में अपने एक्सेल फाइल पे एक्चुअल वर्कआउट करें. सर वर्ड फाइल दिख नहीं रही है वो. योर अच्छा वर्ड फाइल दिख नहीं रही है, एक मिनट. अभी दिख रही है? हाँ अब दिख रही है सर. नहीं, साथ में पीपीटी भी दिख रहा है. अगर नहीं, ये पीपीटी ये गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट. हाँ. मैं करता हूं, इसको ठीक करता हूं, एक मिनट. हाँ. आपको वर्ड फाइल दिख रही है बराबर? यस सर. And now PPT is also visible. सिर्फ अभी पीपीटी दिख रही है. हाँ ठीक है. हाँ. अभी एक्सेल भी दिख रहा है. हाँ ठीक है. देन ओके. तो हमने एजम्पशन किया है लैंड एंड साइट डेवलपमेंट 4 करोड़, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क 8 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 12 करोड़, मिसलेनियस फिक्स एसेट 3 करोड़, प्री ऑपरेटिव 1.5, एंड कंटिजेंसी विल बी 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, नॉन फर्म पोर्शन. And means of finance में हमने लिखा है 75% buy of plant and machinery, miscellaneous fixed asset, and 60% of land and building to be repaid in 24 equal quarterly installment, and balance by way of share capital and unsecured loan of 8 crores. ये एक डमी डेटा है, इसके बेसिस पे मैं एक्सेल में जाता हूं और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिखाता हूं. अभी लैंड एंड साइट डेवलपमेंट हमने 4 करोड़ लिया है डमी डेटा में, वो ले लिया है. बिल्डिंग एंड सिविल वर्क चेंज कर देता हूं 8 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 12 करोड़, मिसलेनियस फिक्स एसेट 3 करोड़ ही है. ये अपने को बाद में करनी है. वर्किंग कैपिटल, मार्जिन मनी, इट विल कम लेटर ऑन. मैंने ब्लू मार्क करके रख दिया है. प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी टेबल से आएगा. प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस 1.5. हमने लिखा है मीन्स ऑफ फाइनेंस में 75% टर्म लोन होगा, 75% ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड मिसलेनियस फिक्स एसेट्स. तो लैंड बिल्डिंग का 75%, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस फिक्स एसेट का 75%,
और लैंड एंड बिल्डिंग का 60%, तो इसको चेंज कर देता हूँ 60%। सिंपल एक्सेल में फॉर्मूला दिया हुआ है सो दैट यू अराइव्ड आउट योर टर्म लोन फिगर। ये टर्म लोन फिगर हो गया। अब आप देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 39.97। आप कोई भी फिगर यहाँ चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस विल ऑलवेज गेट टैली, बिकॉज दैट इज द डायनामिक ऑफ दिस एक्सेल शीट कि हमने फॉर्मूला दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस शुड ऑटोमेटिकली गेट टैली। मीन्स ऑफ फाइनेंस में हमने क्या लिखा है, अनसिक्योर्ड लोन 8 करोड़, 8 बाकी क्वासी इक्विटी। ये अनसिक्योर्ड लोन ले लिया हमने 8 करोड़ एंड बैलेंस बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल। अभी समझ लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्यों। सी जनरली ऑलमोस्ट ऑल बैंक एक्सेप्ट promoters contribution, at least 50%, up to 50% of promoter contribution by way of unsecured loan, and it is all most of the banks, 95% of the banks treated as quasi equity, part of equity treat करते, ना कि debt treat करते। तो ये इसको क्यों करना चाहिए ऐसा कि देखिए आपका जब बैंक पे आप अप्रोच करेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट मैं लगा रहा हूँ और इसका इतनी लागत आएगी, इसके सामने मीन्स ऑफ फाइनेंस ये है, टर्म लोन इतना मांग रहा हूँ, बैलेंस बाय ऑफ प्रोमोटर्स इक्विटी। तो एक पर्टिकुलरली डेट इक्विटी रेशियो या TOL TNW जिसको कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलते हैं, बैंक आपके सैंक्शन टर्म्स में लिखता है यू हैव टू मेंटेन रेशियो ऑफ 2:1। अभी आपने फर्स्ट ईयर सपोज 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था प्रोजेक्शंस के टाइम, एक्चुअल में आपका प्रॉफिट हो गया 3 करोड़। Now this 1 crore is additional net worth which is been in the business. Now you want to withdraw. So what is the mode of withdraw? You can take director's remuneration. You can take अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, एंड अगर कंपनी है तो यू कैन टेक बाय वे ऑफ डिविडेंड। बट ये आपका टैक्स पेड मनी जो आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है उसको अगर इस तरीके से विड्रॉ करेंगे बाय वे ऑफ डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो यू हैव टू पे टैक्स अगेन ऑन दोज इनकम। तो एक तो टैक्स पेड मनी आपने इन्वेस्ट किया, वहां से विड्रॉ करते टाइम बाय ऑफ रेम्यूनरेशन करेंगे या बाय ऑफ डिविडेंड करेंगे तो आपको वापस टैक्स भरनी पड़ेगी, चाहे वो इंडिविजुअल में भरे चाहे वो कंपनी में भरे। कंपनी में आजकल डिविडेंड तो कंपनी DDT टैक्स हट गया है, तो इंडिविजुअल में अगेन आपका डिविडेंड टैक्सेबल है, एंड रेम्यूनरेशन लेंगे तो सैलरी पार्ट ऑफ सैलरी होगा, आपको वापस कंपनी TDS काट के देगी, आपको यू हैव टू पे द टैक्सेस। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बैंक के साथ डिस्कस करें, सम पार्ट शुड बी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम पार्टनर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बाय वे ऑफ unsecured loan from directors, shareholders, which is allowed as per Companies Act। तो क्या होगा अगर आपने कभी अच्छा प्रॉफिट कमाया more than the projections, then you can take back that excess money for your other project or for anything else। And generally bank एक sanction terms में लिखता है if you wish to withdraw any money from the business you have to take prior permission of bank। but अगर आप नेटवर्क मेंटेन कर रहे हैं तो प्रायर बैंक परमिशन आपको दे देती है। दूसरा क्या होता है, अगर सपोज पार्टनरशिप फर्म बनाया है तो आपके जो घर के लेडीज की फाइलें हैं, जिसकी HUF की फाइल है, वहां आप बिजनेस नहीं कर सकते। HUF फाइल में जनरली कोई बिजनेस नहीं कर सकता। वहां किस तरह की इनकम आ सकती है, इंटरेस्ट इनकम, कोई प्रॉपर्टी लिया तो रेंट इनकम, या मे बी शेयर ट्रेडिंग इनकम। ये 2-3 ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शन है। लेडीज फाइल में या तो उनको आप डायरेक्टर बना के रेम्यूनरेशन दीजिए, बट बहुत सारे कंसर्न रहता है कि आजकल क्या कंप्लायंस बहुत है, MCA का भी कंप्लायंस बहुत है, तो पीपल आर बिट कंजर्वेटिव टू अपॉइंट। घर के जो लेडीज है उसको डायरेक्टर बनाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है। और अगर अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं उनसे और उसको शेयर होल्डर बना के आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उस फाइलों में आप जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, एक तो वो इंटरेस्ट का खर्चा आपके प्रोजेक्ट में माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, और दूसरा उनके फाइलों में भी कुछ तरह की अच्छी इनकम आ जाएगी। तो परफेक्ट टैक्स प्लानिंग होता है, लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग होता है। दैट्स व्हाई जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनावे, टर्म लोन का एप्लीकेशन बनावे, तो थोड़ा पोर्शन आप क्वासी इक्विटी में रखिए। इफ इन केस योर प्रोजेक्ट परफॉर्म्स बेटर देन प्रोजेक्टेड, देन यू कैन विथड्रॉ दैट काइंड ऑफ मनी विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस, बिकॉज आपने क्वासी इक्विटी रखा है। इतना सा ध्यान रखिए बस। तो अपना पहला स्टेप में ये था कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस और कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी बनाएंगे। तो बाजू में मैंने कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी टेबल बनाया। कंटिजेंसी में लिखा हुआ है 5% विल बी द कंटिजेंसी अपार्ट फ्रॉम
फर्म कॉस्ट। लैंड हमने प्रोजेक्ट डिटेल्स में आपको ध्यान होगा वर्ड फाइल में लिखा हुआ था कि 3 करोड़ का लैंड हमने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, तो इसमें अब कंटिजेंसी बची नहीं। एंड बैलेंस पोर्शन जो साइट डेवलपमेंट का 1 करोड़ है उसमें कंटिजेंसी बची है, और हमने लिखा है कंटिजेंसी विल बी 5% ऑफ ऑल नॉन फर्म पोर्शन। तो यहाँ 7% लिखा हुआ है और 1.70 आया हुआ है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस। देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, नीचे 1.7 है, दिस इज 1.7 आज के दिन, एंड ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में भी 1.7 लिखा हुआ है। अपन 5% करते हैं, ये चेंज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, थोड़ा सा दिखना चाहिए। ओके, तो इसको मैंने 5% कर दिया, इसको 5% कर दिया, इसको भी 5% कर दिया। देखिए यहाँ 1.28 हुआ, ऑटोमेटिकली 1.28 हुआ। तो दिस इज द डायनामिक ऑफ दिस स्प्रेडशीट कि जहां भी कुछ चेंज करे, बिकॉज आई हैव पिक्ड अप दिस कंटिजेंसी फिगर फ्रॉम कंटिजेंसी टेबल। इफ यू सी आई हैव गिवन द फॉर्मूला M23 सेल नंबर M23 व्हिच इज एग्जैक्टली कंटिजेंसी फिगर। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में वो फिगर चेंज हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई कंटिजेंसी। आप अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में है या आपके कोई क्लाइंट ने टर्म लोन लिया है, तो आप अगर सैंक्शन लेटर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है एनी ओवररन टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी बोर्न बाय प्रोमोटर्स। अभी आपको मालूम है रिसेंटली और पिछले 1 साल में स्टील सीमेंट प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, बहुत ज्यादा अपवर्ड चला गया। तो देयर इज चांसेस आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में थोड़ी बहुत अपवर्ड रिवीजन आ सकता है। सी नीचे का रिवीजन आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्राइसेस बढ़ गई, कॉस्ट एस्केलेट हो गया, तो बैंक का वो सैंक्शन टर्म्स में ये लिखा हुआ है कि एनी ओवररन टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द प्रोमोटर्स। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनावे, टर्म लोन का एप्लीकेशन करे, इस तरह का फाइनेंशियल्स बनावे, यू मस्ट कीप सम प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। वो 5% हो सकती है, 2% हो सकती है, 7% हो सकती है, दैट यू एंड योर क्लाइंट विल टेक कॉल, बट कंटिजेंसी रहना चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन भी हो गया, सिंस यू हैव इंक्लूडेड कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो ओवररन का जो क्लॉज है उसको बीट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए इस तरह का कंटिजेंसी टेबल बना के आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में डालना चाहिए। तो हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का फिगर डाल दिया, मीन्स ऑफ फाइनेंस में मीन्स ऑफ फाइनेंस का फिगर डाल दिया। आपको वापस बताता हूं कैसे डायनामिक है। ये फिगर चेंज हुआ 1.28, आपका प्री ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट चेंज हो गया 39.55। आप नीचे देखिए मीन्स ऑफ फाइनेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 39.55। डिफरेंस इज 0/0। तो अपन पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। लेट गो टू सेकेंड स्टेप। क्या बोलता है मेरा पीपीटी, एंड देन विल कंप्लीट स्टेप नंबर 2। Step number 2, complete the production and sales statement. You arrived at sales figure which will go to working result sheet. तो हमको एक सेकंड टेबल बनानी है, उस टेबल का नाम है these are the table prescribed by institution। कोई शिव भगवान असावा का खुद का बनाया हुआ नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई, ये टेबल सारे चीजें इंस्टीट्यूशन ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया और उसी फॉर्मेट के बेसिस पे मैं ये सारा प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ। तो ये ऑथेंटिकेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिकेटेड एक्सेल शीट है which I have designed into Excel. There are other software also, but software के बहुत इश्यूज आते हैं, बट एक्सेल शीट में आपको बनाना आ गया तो आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ना। तो बेसिकली अपन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर वेल वर्स्ड विथ एक्सेल एंड वर्ड एंड दिस काइंड ऑफ फाइल। Probably we are not that capable. Everybody is not capable to put everything in software and get प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी। बट सॉफ्टवेयर में एक अलग डिफिकल्टीज आते हैं कि कई बार आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करते कहां से कौन सा फिगर क्या चेंज हो रहा है। जब एक्सेल शीट में बनाएंगे तो यू आर थॉरो, तो अगर कुछ चेंजेस करनी है तो ऑटोमेटिकली चेंजेस भी हो जाएगा, बिकॉज दिस एक्सेल शीट इज डायनामिक एंड आपको मजा भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा क्या है। तो सेकंड स्टेप हमने लिखा है कंप्लीट द प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट। You arrived at sales figure which will go to working results. अभी अपन assumption जो वर्ड फाइल है उसमें प्रोडक्शन का क्या डेटा हमने एज्यूम किया है, क्या डमी डेटा लिया है, उसके बेसिस पे अपन एक्सेल में ये प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट बनाएंगे। तो लेट्स गो टू वर्ड फाइल और उसमें प्रोडक्शन का डेटा देखते हैं। ये प्रोडक्शन डिटेल्स, ये सारे मैंने डमी डेटा लिया है।
उसमें लिखा हुआ है कमर्शियल प्रोडक्शन टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22, 360 days in a year, 3 shift basis. Install capacity A 1.5 lakh liter per month and product B 2 lakh liter per month, amounting to annual capacity of 24 lakh. Capacity utilization first year 70, second year 80 and third year 90, and thereafter 5% price inflation growth year after year. And selling price 475 per liter for product A and product B पे 575 पर लीटर। ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे डिटेल्स आपको क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेंगे, या क्लाइंट का जो टेक्निकल कंसल्टेंट है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे या आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको ये टेबल में डालना है। तो लेट्स गो टू प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट इन एक्सेल शीट। मैंने बाजू हॉरिजॉन्टली सब बनाया, तो एक प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट यहाँ ही बनाया है, आपको दिखाता हूं। अच्छा, अभी डिटेल से है, ए का 1.5 लाख और बी का 2 लाख, तो 18 लाख और 24 लाख एनुअल कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये सेकेंड ईयर में चेंज भी हो सकता है, अगर चेंज होना तो आप चेंज कर दीजिए, बट एक डमी डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग की फर्स्ट 3 इयर्स इंस्टॉल कैपेसिटी विल बी सेम। तो 18 लाख प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का 24 लाख, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 360, नंबर ऑफ शिफ्ट 3। तो अपने को आर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60, 78 नहीं, क्या लिखा है 70, 80 एंड 90, तो इसको चेंज कर देते हैं 70, 80 और 90 कर देते हैं। बेस्ड ऑन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेरे पास टोटल एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन आ गया कि प्रोडक्ट ए का 12,60,000 लीटर बनेगा, प्रोडक्ट बी का 16,80,000 लीटर बनेगा। एंड जैसे जैसे कैपेसिटी चेंज हो गया प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड सेलिंग प्राइस we have assumed 475 and 575, so 475 and 575. I have arrived at sales figure first year 156, second year 178, third year 201 crores. So ये by this we have prepared second step, that is called estimation of production and sales. तो इसमें अगर कुछ चेंज करना है, सपोज आपका प्रोडक्शन 1 अप्रैल से नहीं होके आपका प्रोडक्शन होगा से 1 अक्टूबर, आपका 180 दिन ही काम आएगा, 6 मंथ, इसको 180 दिन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एनुअल प्रोडक्शन देखिए आधा हो गया, एंड आपका सेल्स फिगर भी 156 करोड़ पहले आया था कुछ, अभी 78 करोड़ हो गया। तो दी आर डायनामिज्म ऑफ दिस एक्सेल शीट कि आप कुछ भी चेंज करो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट चेंज। तो वापस मैं 360 कर देता हूं। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट ईयर 180 एंड सेकेंड ईयर अगेन 360, तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ईयर आधा हो गया, सेकेंड ईयर एज यूजुअल जो सेकेंड और थर्ड ईयर में पहले बनाए थे वही फिगर है। तो लेट्स मेक इट 360 फॉर ईच ईयर। तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, वी हैव प्रिपेयर्ड प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव अराइव्ड एट सेल्स फिगर। एंड ये सेल्स फिगर को वर्किंग रिजल्ट्स में लेके जाना। आपको थोड़ा नॉमेनकल्चर समझा देता हूं। नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपन बनाते हैं कोई भी क्लाइंट का, तो ऐसा रहता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका नॉमेनकल्चर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, which means it is all direct cost related to production, and working results means it is profit and loss account. तो ये कॉस्ट ऑफ अपना जो प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट के थ्रू जो सेल्स फिगर आया है उसको वर्किंग रिजल्ट्स में लेके जाना है। तो बाजू में मैंने वर्किंग रिजल्ट्स का सीट बनाया है, ये मेरा वर्किंग रिजल्ट्स का सीट्स, और यहाँ पर वो सेल्स फिगर मैंने प्लस फॉर्मूला देके पिक कर लिया। तो उधर अगर कुछ चेंज होगा ऑटोमेटिकली इधर चेंज होगा। देखिए आपको मैं एक बार लाइव डेटा भी करके दिखा देता हूँ। ये 70, 80, 90 में आपका 156, 178 एंड 201 का टोटल सेल्स फिगर अराइव हुआ है। इसको अगर चेंज करता हूँ 60, 70 और 80, तो यहाँ आपके सेल्स के फिगर चेंज हो गए हैं। ये 60, 70, 80% के हिसाब से जो सेल्स आया है ऑटोमेटिकली यहाँ भी वो चेंज हो गया। आप देखिए दोनों आपस में टैली है। ये 134, 156, 178 वही फिगर अपना प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट में ही आएगा। बिकॉज सिंपल है, एक्सेल तो क्या है प्लस फॉर्मूला दे रखा है, तो जो भी चेंजेस आप यहाँ करेंगे वह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको वापस और एक चीज आपको दिखाऊंगा बाद में। ये 70, 80, 90 कर देता हूँ, तो 70, 80, 90 कर दिया, 156, 178, 201,
एंड यहाँ भी 156 ये वर्किंग रिजल्ट्स का पहला पेज है, आपको हेडलाइन दिखाता हूँ, एस्टिमेट्स ऑफ वर्किंग रिजल्ट्स एंड यहाँ सेल्स फिगर, प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट आ गया। तो हमने वी हैव कंप्लीटेड नाउ स्टेप नंबर 2 टू अराइव दैट व्हाट विल बी माय सेल्स फिगर। तो प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट, दीज आर द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, उस फॉर्मेट में डाल के हमने सेल्स फिगर आ गया। अभी आपके मन पे सवाल आता है कि ये तो टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपने प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट बना दिया, सपोज हमको होटल का कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो क्या होगा? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर अवेयर ऑफ, अपना बेसिक पर्पस क्या है कि प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट से सेल्स का फिगर लाना है, तो उसमें माइनर मॉडिफिकेशन आपको करना है। यहाँ इंस्टॉल कैपेसिटी में आ जाएगा रूम डेज, बिकॉज होटल प्रोजेक्ट में रूम डेज से आता है कि समझ लो 300 रूम का होटल है तो 300 into 365 विल बी रूम डेज योर इंस्टॉल कैपेसिटी, एंड उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जगह आप लिखेंगे ऑक्यूपेंसी रेशियो। तो आपका उसी वही सिंपल फॉर्मूला है, उसी से आपको बेसिक पर्पज ये है कि हमको सेल्स फिगर अराइव करना है, चाहे वो होटल प्रोजेक्ट हो चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हो। आई होप यू आर एट पार विथ मी, यू आर ये। तो ये सेल्स फिगर आ गया, हमने स्टेप नंबर 2 कंप्लीट किया, हमने वर्किंग रिजल्ट्स में वो सेल्स फिगर को डाल दिया। नाउ सी हमारा पीपीटी क्या बोलता है कि थर्ड क्या करना है। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट। तो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मतलब ऑल डायरेक्ट ओवरहेड विल कम इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमारे क्लाइंट ने जो डमी डेटा पे मैं वर्क कर रहा हूं उसमें क्या डिटेल्स दिया हो वो देख लेते हैं, एंड देन वी विल प्रिपेयर दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट। ये कॉस्टिंग डिटेल्स हमको दे दिया है। रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए के लिए 350, बी के लिए 450 पर लीटर, स्टोर स्पेस 50 रुपीज पर लीटर, पैकिंग मटेरियल 10 पर लीटर फॉर प्रोडक्शन ए एंड बी, power and fuel first year 10 lakhs, then 10% incremental cost second and third year, labor cost 50 labor 10,000 per month, supervisor 5 supervisor 30,000 per month, insurance and taxes 0.5% cost, other factory overheads 7, 8, 9 lakhs per month respectively in first year, second year, third year। ये डिटेल्स हमारे पास आ गया है, तो अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का शीट आराम से बना सकते हैं। लेट्स गो टू एक्सेल। जिस प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट बनाया है, ऐसी मैंने एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाया यहाँ पर। ये एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन, देखिए एक मजेदार चीज देखिए कि मैंने वहां कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेंज किया था 70, 80, 90, यहाँ ऑटोमेटिकली फॉर्मूला दिया हुआ है तो इधर भी चेंज हो गया। दैट इज द डायनामिक और डायनामिज्म ऑफ दिस स्प्रेडशीट। वहां जो चेंज करेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वापस एक बार चेंज करके देखते हैं कि यहाँ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ 70, 80, 90 अपन करते हैं 60, 70 एंड 80, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ फिगर चेंज हो गया कि नहीं देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ये देखिए 60, 70, 80 आ गया। तो लेट रिस्टोर व्हाटएवर assumption we have taken as per tally data, as per our dummy data। तो ये 70, 80, 90 अपन कर देते वापस। सेल्स फिगर चेंज हो गया, वर्किंग रिजल्ट्स में सेल्स फिगर चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन पर 70, 80, 90 आ गया है। अभी देखिए कि हमने लिखा है रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्ट ए के लिए 350 और बी के लिए 450। तो आपको ध्यान में होगा प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट में एनुअल प्रोडक्शन का फिगर है, तो हमने लिंक कर दिया। एनुअल प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए जो है उसको 350 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट बी जो BL26 सेल में था उसको 450 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का फिगर जोड़ा, 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया। तो वी हैव अराइव्ड एट रॉ मटेरियल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन क्रोर्स। तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आ गया। इट्स कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट, जो आपका एनुअल प्रोडक्शन होगा उसी के हिसाब से आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट लगेगा। स्टोर स्पेस हमारा एजम्पशन था, दोनों प्रोडक्ट ए और बी के लिए 50 रुपया लीटर लगेगा, तो 50 रुपया लीटर दोनों एनुअल प्रोडक्शन को ऐड कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई किया एंड कन्वर्टेड इनटू क्रोर्स। तो तीनों साल के लिए हमारा स्टोर स्पेयर्स आ गया। पैकिंग मटेरियल 10 रुपए पर लीटर कॉस्ट था, तो हमने वही सिंपल फॉर्मूला अगेन जो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ए है
जो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बी है उसको जोड़ के मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय क्रोर्स, वी हैव अराइव्ड एट पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। यूटिलिटीज हमारा एजम्पशन ये था डमी डेटा पे, पहला साल 10 लाख रुपया लगेगा तो 1.2 करोड़ हो गया पहला साल। उसके बाद 110% इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगा, बिकॉज प्रोडक्शन जिस तरह से इंक्रीमेंट होता है उसी तरह से पावर कॉस्ट इंक्रीमेंट होता नहीं है, देयर प्रोपोर्शनेट में चेंज नहीं होता है। बट इस तरह का डेटा जो हमने एजम्पशन किया 10 लाख, प्रोजेक्ट फिनांस बनाते टाइम, प्रोजेक्ट फिनेंशियल बनाते टाइम आपको जो टैली, आपको जो डमी, आपको जो क्लाइंट आपको डेटा देगा उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। ये मैंने एजम्पशन किया 10 लाख एंड देन 10% पर ईयर इंक्रीमेंट, बट ये एजम्पशन अलग भी हो सकती है। आपको खाली इतना करना है, जब आप प्रोजेक्ट फिनेंशियल बन रहे हो उसके साथ आपको एक एजम्पशन शीट बना के देनी है कि आपने जो जो फिगर जहां जहां लिया है उसके पीछे आपका एजम्पशन क्या है। बिकॉज आप कोई बैंकर को हार्ड कॉपी देने वाले हो, आप एक्सेल शीट नहीं देने वाले हो, तो ही इज नॉट अवेयर कहां से कौन सा फिगर आया है। तो आपको सारी की सारी एजम्पशन शीट में अपनी बेसिस ऑफ अराइविंग एट सर्टेन कॉस्ट you have to put there so that bankers can see that assumption sheet and he can aware of कि भाई कौन सा कॉस्ट कहां से आया है। समझ लो पावर, फ्यूल, वाटर कॉस्ट कोई दूसरा फॉर्मूला से आपने अराइव किया है, भाई कनेक्ट लोड, डिमांड लोड। कुछ कुछ इंडस्ट्री है जहां स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अभी आप टेक्सचराइजिंग टेक्सटाइल का यान बना रहे हो, नॉर्मल यान को कन्वर्ट कर रहे हो ट्विस्टेड एंड टेक्सचराइजिंग, वहां करीबन 2 रुपया पर किलो यान के पीछे खर्चा होता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आप 2 रुपए डाल सकते हो, कहीं स्टैंडर्ड नहीं है तो यू हैव टू पुट योर एजम्पशंस। अगर बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो जहां आप टर्म लोन 20-50 करोड़ का एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपके पास वर्किंग चीज रहनी चाहिए कि आपका पावर, फ्यूल, वाटर कॉस्ट का हाउ यू हैव अराइव्ड एट दैट फिगर, वो वर्किंग शीट होनी चाहिए, ताकि बैंकर आपको पूछे तो आपको उसको एक्सप्लेन कर सकते हो हाउ यू हैव अराइव्ड एट। नाउ सिंपल अगेन, वर्कर्स हमने एज्यूम किया था 50 वर्कर 10,000 पर मंथ, 12 मंथ का हमने कर दिया और 1 करोड़ से डिवाइड किया तो एवरी फर्स्ट ईयर 60 लाख। देन नॉर्मली एक आपको हर साल इंक्रीमेंट देना पड़ता है, विच इज अराउंड 10%। हमने एज्यूम किया 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, बट बेस्ड ऑन दैट वी हैव एज्यूम दैट देयर विल बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 10%। ऐसे ही फैक्ट्री सुपरवाइजर का आपने ले लिया, 5 सुपरवाइजर 30,000 12 मंथ्स and converted into crores of rupees, first year second year आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंश्योरेंस एक्सेस अपने 5%, 0.05% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट has been taken as insurance cost. Generally insurance cost almost same रहता है, there is hardly negligible difference, negligible changes in insurance cost। तो हमने तीनों साल इंश्योरेंस कॉस्ट सेम रखा है 8 लाख 8 लाख 8 लाख। एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने डेमी डेटा में लिया था 7 लाख 8 लाख 9 लाख, तो ये 7 लाख 8 लाख 9 लाख के हिसाब से 84, 96 एंड 1.08। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो स्टेप नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया। अभी आप देखिए कि जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए, जितना पीरियड का आपका टर्म लोन है, टर्म लोन हमारे केस में हमने एज्यूम किया कि 1+6 ईयर्स है, बिकॉज अपने 1 साल मोरेटोरियम के बाद 24 इंस्टॉलमेंट में, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो आपका प्रोजेक्शन 7 साल के लिए बनेगा। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सीट है मैंने बनाया है 3 साल। ये कितने साल के लिए बनाना चाहिए? तो मेरा कहना है जब तक प्रोजेक्ट में ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं आएगा तब तक का आपको एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाना है। सपोज आपको क्लाइंट ने आपको फिगर दिया कि फर्स्ट ईयर 50% होगा, सेकेंड ईयर 60% होगा, थर्ड ईयर 70, फोर्थ ईयर 80 एंड फिफ्थ ईयर जाके 90%, विच इज ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो आपको ये 3 के जगह 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। जहां तक आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नॉर्मल होता है वहां तक आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का शीट बनानी है। हमारे इस केस में डमी डेटा में हमने एज्यूमशन किया कि 70, 80 एंड 90% हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगी एंड 90% इज द ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेस्ड ऑन आवर एजम्पशन हमने 3 साल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का शीट बनाया है। 22-23, 23-24, 24-25 हमारे डमी डेटा के हिसाब से 1 अप्रैल 2022 में हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 3rd नंबर शीट कंप्लीट हो गया। लेट्स सी व्हाट आवर पीपीटी सजेस्ट कि स्टेप नंबर 4 क्या है। Step number 4, complete the working results page 1 sheet till set।
तो सेल्स का फिगर तो हमने वर्किंग रिजल्ट्स में डाल दिया है। अभी उसका पेज 1 में जो अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड है वो सब डालना है। इजी प्रोसेस है। विल सी व्हाट इज आवर सजेस्टेड और डमी डेटा जो हमने एज्यूम किया है वो डेटा क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कंप्लीट दिस वर्किंग रिजल्ट्स अप टू सेल्स। गिव मी a 1 minute break, let me have water. नाउ डमी डेटा में इनडायरेक्ट ओवरहेड का भी डिटेल्स दिया हुआ है। सैलरी 5 लाख पर मंथ, ये स्टाफ सैलरी है, दैट्स व्हाई इनडायरेक्ट ओवरहेड है। डायरेक्टर रेम्युनरेशन 4 लाख पर मंथ, देन 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर। टेलीफोन, स्टेशनरी, स्टाफ वेलफेयर, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा 3 लाख पर मंथ, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5% ऑफ सेल्स। इतना सारे डेटा को अपने को वर्किंग रिजल्ट्स में डालना है। तो हमने क्या किया है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तीनों साल का आए थे, ये 140, 160, 180, व्हाट आई हैव डन, यहाँ पर वही फिगर ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया, वहां आ गया, वहां से पिक कर लिया 140, 160, 180, एंड उसके बाद हमने एज्यूम किया भाई 5% का जैसे जैसे इन्फ्लेशन रहेगा वैसे वैसे अपने को ग्रोथ होगी, तो 5% का हमने ईयर ऑन ईयर प्राइस ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है और सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाया, तो बाद में 5% से इंक्रीमेंट दे दिया। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 साल के लिए बना रहे हो या प्रोजेक्ट टर्म लोन ड्यूरेशन के लिए बना रहे हो, तो इस तरह का एजम्पशन आपको देने की जरूरत नहीं है, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट्स में वर्किंग रिजल्ट्स आ जाएगा। ये वर्किंग रिजल्ट्स का पेज 1 है। सैलरीज हमने 60 लाख एंड देयर आफ्टर 10% इंक्रीमेंट ले लिया। डायरेक्टर रेम्युनरेशन 4 लाख पर मंथ है तो 48 लाख, उसके बाद 10% इंक्रीमेंट ले लिया। एंड टेलीफोन, ऑफिस सप्लाईज एक्सेट्रा, ये 3 लाख रुपया पर मंथ है, बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट ईयर 36 एंड देन 10% इंक्रीमेंट ले लिया। आपका पास सेल्स फिगर है, सिंपल फॉर्मूला दे दिया 5%। यहाँ देखिए फॉर्मूला में देखिए कि हमने सेल्स इंटू 5% which we have assumed our selling and distribution cost automatically यहाँ पर आ गया। तो वर्किंग रिजल्ट स्टिल सेल्स अपन स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सी व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, कंप्लीट टर्म लोन चार्ट टू अराइव एट इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट। तो एक टर्म लोन का अपने को चार्ट बनाने पड़ेंगे। हमको डिटेल्स ये दिया गया कि आप 1 साल का मोरेटोरियम लीजिए और 24 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको टर्म लोन पे करना पड़ेगा। तो टर्म लोन चार्ट का एक एक्सेल शीट बनाया है, वो अपन अभी कंप्लीट करेंगे। टर्म लोन चार्ट बाजू में मैंने बना रखा है, आपको दिखा देता हूं। ये मेरा इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन 1 प्लस रुपी टर्म लोन 1 प्लस 6 ईयर्स। हमने एज्यूम किया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5%। अगर चेंज करना अभी चेंज करके भी देख लेंगे। तो ये टर्म लोन में कितना कौन सा फिगर आएगा, तो सिंपल है, मीन्स ऑफ फाइनेंस से आपको पिक करना है, सो दैट अगर मीन्स ऑफ फाइनेंस चेंज होता है तो टर्म लोन का ये फिगर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमने एज्यूम किया फर्स्ट ईयर कोई रिपेमेंट नहीं करेंगे तो चारों क्वार्टर में 0 रखा है। इंटरेस्ट 8.5% के हिसाब से हमने 41 लाख जो फॉर्मूला सिंपल दे रखा है उसके हिसाब से पर क्वार्टर इंटरेस्ट आ गया। अगर इसको चेंज करेंगे 8.5 की जगह 9% करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए नीचे चेंज हो गया, तो अब लेट इट बी 9% ऑन। तो आपका एवरी ईयर का इंटरेस्ट आ गया, एवरी ईयर का रीपेमेंट आ गया। अपना 24 क्वार्टरली था तो इसको 20 क्वार्टर किया हुआ था, इसको मैं 24 करता हूं। तो ये 24 के हिसाब से देखिए एंड ऑफ 24 माय टर्म लोन इज अगेन 0/0। तो सिंपल है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। टर्म लोन चार्ट में अगर 24 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में सारा पे होना चाहिए तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 24th क्वार्टर शुड बी 0/0। तो यहाँ 0 आ गया है और हमने हर ईयर का इंटरेस्ट और रीपेमेंट क्या लगेगा ये कंप्लीट कर लिया है। तो पहला साल 1.75, सेकेंड ईयर 1.64 एंड सेकेंड ईयर से हमारा रीपेमेंट चालू हो रहा है, तो एवरी ईयर 3.23 करोड़ का रीपेमेंट करना है। तो स्टेप नंबर 4 इज नाउ कंप्लीट। नाउ सी व्हाट इज माय स्टेप नंबर 5। Complete the working capital margin money sheet. Margin money will be part of project cost. Take into cost of project. Arrive at working capital limit requirement. आपको ध्यान होगा स्टेप 1 जब बनाए थे हमने 3 टेबल बनाया था, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमने लिखा था कि मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल एक बार छोड़ दीजिए,
वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्किंग रिजल्ट्स का जब शीट कंप्लीट होगा तब बनाना पड़ेगा। अभी नाउ वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी का एक चार्ट बनाया टेबल, विल गो टू एक्सेल शीट एंड विल कंप्लीट दैट थिंग्स। उसके पहले हम देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए हमारा डमी डेटा में क्या एजम्पशन लिया हुआ। अभी टर्म लोन हमने 9% लगाया है, तो इसको 9% कर देते एजम्पशन में, सो दैट बाद में आप रिव्यू करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। और हमने लिखा है रॉ मटेरियल 1 month, raw material holding period is 1 month, stock of finished goods is half month, WIP 1 week, and debtors 3 months, creditors 2 months. Based on this assumption, we will prepare margin money for working capital. Because जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे टर्म लोन के रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कितनी होगी वो बैंकर को बतानी पड़ती है, जो अप्रेजल यूनिट है। बिकॉज फाइनेंशियल क्लोजर तभी होता है जब आप टर्म लोन के साथ साथ वर्किंग कैपिटल, जिसको सीसी बोले, ओडी बोले, उसकी लिमिट भी आपको सैंक्शन करा के रखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो डिसबर्समेंट कब होगी, जब आपका कमर्शियल प्रोडक्शन, यू विल स्टार्ट ट्रायल रन, यू विल स्टार्ट प्रोक्योरिंग मटेरियल। तो हमारा ये एजम्पशन है डमी डेटा में, रॉ मटेरियल 1 महीने का, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड आधा महीने का, WIP 1/4 month, और डेटर्स 3, क्रेडिटर्स 2। लेट्स गो टू वर्किंग मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल शीट इन एक्सेल। हमने वो फर्स्ट स्टेप में उसको इनकम्प्लीट रखा था, उसको अपन अभी कंप्लीट करते हैं। ये मेरा सीट है मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल 22, 23, 23, 24, 24, 25, पहला 3 साल के लिए। रॉ मटेरियल होल्डिंग 1 month, यहाँ 1 month लिया है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 0.5, स्टॉक ऑफ स्टॉक इन प्रोसेस 0.25, डेटर्स 3 months एंड ट्रेड क्रेडिटर्स 2 months। ये कर लिया है। मार्जिन मनी जनरली 25% रहती है, तो हमने यहाँ 25% लिख दिया मार्जिन मनी। अब कोई कोई बैंक, पर्टिकुलरली नेशनलाइज्ड बैंक बोलता है डेटर्स पे हम मार्जिन ज्यादा लेंगे, आपको 25-75% फंडिंग नहीं करेंगे, विल फंड यू 60%, तो 40% आपको लाना है। तो आप देखिए यहाँ अगर मैं 40% करूंगा, सच ए डायनामिक एक्सेल शीट, ऑटोमेटिकली इट विल गेट चेंज। ये मैंने चेंज कर दिया। यहाँ देखिए मेरा मार्जिन मनी का फिगर 25% जब था तो मार्जिन मनी का फिगर था 9.78, और अभी इसको 40% करता हूं तो मार्जिन मनी का फिगर चेंज हो गया, तो मेरा बैंक फाइनेंस का अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। दीज आर ग्रॉस फिगर कि आपके एसेट, टोटल एसेट क्या रहेगी, कितना बैंक फंडिंग करेगी और कितना आपको लाना है। तो इसको वापस 25% कर देते तो ये चेंज हो जाएगा। ये फिगर कई बार कोऑपरेटिव बैंक क्या करती है, वो बोलते हैं डेटर्स में स्टॉक इन गुड्स, फिनिश गुड्स, प्रोसेस, रॉ मटेरियल, इसमें आप 30% का मार्जिन लगाइए एंड डेटर्स में 40%। तो आपका सीट इतना डायनामिक होना चाहिए कि ऑन ए क्लिक ऑफ ए बटन, एक बार आप किसी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको माइनर मॉडिफिकेशन करके आप दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से बना सकते हो। दैट्स व्हाई माय हेडिंग इज project financial in few minutes, and I am giving you a guarantee, once you carefully listen my session, after that project financials 50 पेज का जो इनिशियल रिपोर्ट होता है, 40 से 50, कोई जरूरी नहीं हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको 30-40 पेज का रिपोर्ट देना पड़े, कहीं आपको 7-8 पेज का भी रिपोर्ट दिए तो भी काम चल जाता है। बट इसको बनाने के लिए आपके पास अगर डेटा रेडी है, ये ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। खाली मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जब आप क्लाइंट को देते हो उसको ये मत बोलो कि मैंने 15-20 मिनट में बना दिया, देन ऑफ कोर्स यू विल से सर 15-20 मिनट का आप कहाँ 15-20 हजार रुपया ले लो, हर मिनट का 1000 रुपया 2000 रुपया ले लो। तो क्लाइंट को देते टाइम ये बोलिए कि इसमें मेरा 20 साल का, 15 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस है। उनको देते टाइम ये बोलिए कि मेरे को 2 दिन लगेगा, कम से कम 24 से 48 घंटे बाद ही क्लाइंट को इस तरह का डेटा दीजिए। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। परसों के दिन मैं सेमिनार ले रहा था, मेरा ही एक क्लाइंट आया कि सर मेरे को लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना है, बैंक वालों ने बोला DSCR रेशियो, प्रोजेक्शन एंड DSCR रेशियो आप बना के दो। तो मैंने 15-20 मिनट में प्रोजेक्शंस एंड DSCR बना के रेडी रखा, मेरे ऑफिस के स्टाफ को बोल के गया कि ये क्लाइंट को परसों फोन करके बोलना कि आपका सिस्टम तैयार हो गया है, प्रोजेक्शंस भी बना दिया हमने, DSCR रेशियो भी बना दिया, टर्म लोन चार्ट भी बना दीजिए, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम माय ऑफिस एट सो एंड सो टाइम। एंड उसी के साथ उसको इनवॉइस पकड़ा दिया, उनको बोल दिया कि इसमें 2 दिन का हमारा मेहनत गया है, हमारी फीस 20,000 रुपया है। क्लाइंट खुशी खुशी 20,000 रुपया देके वो लेके गया। तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए
जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोबेबली यू नीड टू स्पेयर, अभी तो माशाल्लाह है वेबसाइट तो बन ही नहीं रहा है, और बनेगा तो भी 2-2 घंटा 2.5 घंटे आपको एक सिंपल बिजनेस रिटर्न फाइल करने के लिए लग रहे हैं, और उसके एवज में आपको फीस 1000 रुपया से 5000, कई केसेस में बड़ी फर्म होगी, सुपरलेटिव फर्म होगी, सोनी जी जैसे फर्म होगी तो शायद 10,000 भी मिल सकता है। यहाँ तो मैं 15-20 मिनट में आपका काम तमाम, और 15 से 25,000 रुपए आराम से चार्ज कर सकते हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, 40-50 करोड़ का टर्म लोन है, 25 करोड़ का टर्म लोन है, जनरली वी चार्ज 2 लाख to 5 लाख रुपीज ऑफ फीस। उसमें थोड़ा डिटेल्स और भी देते हैं, जैसे मार्केटिंग अरेंजमेंट, लोकेशन एडवांटेज, प्रोमोटर्स डिटेल्स, मशीनरी डिटेल्स का, पावर फ्यूल वर्किंग का थोड़ा वर्किंग बना के देते, और वो रिपोर्ट पर 100 पेज का बन जाता है, 80 पेज 100 पेज का बनता है। एंड आवर फीस जनरली व्हाट आवर फर्म, माय फर्म चार्जेस is around 2 lakhs to 5 lakhs rupees. We have prepared hundreds of such project report for even consultant like Dalal Engineering and all. There are n number of technical consultant available in India, but उनको finance का ज्ञान नहीं है, तो finance ये institution का format है। तो generally आप कोई बड़ा technology कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट के साथ जुड़ जाओगे तो उसको बोल सकते हो कि भाई आपका टेक्निकल कंसल्टेंट आप बनाओ और फिनेंस पार्ट हम बना के आपको हेल्प करेंगे। यू गेट गुड अमाउंट ऑफ फीस। समटाइम्स इवन टेक्निकल कंसल्टेंट के साथ टाई अप हो गया, जैसे एक जमाने में दलाल इंजीनियरिंग वाज फेमस फॉर एनी टेक्सटाइल प्रोजेक्ट। आपको 100, 200, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेना है तो आपको दलाल इंजीनियरिंग वाज वन ऑफ द पायनियर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उनसे टेक्निकल कंसल्टेंसी लेते थे। और मेरी फर्म जो है दलाल इंजीनियरिंग के साथ टाइड अप था, हम उनको फिनेंस पार्ट बना के देते थे। वे बैक इन 2000 दलाल इंजीनियरिंग यूज्ड टू पे अस 2 लाख रुपीज फॉर कंप्लीटिंग देयर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, एंड 2 लाख में हम डायरेक्ट क्लाइंट को बिल करते थे। 1 लाख मतलब दलाल इंजीनियरिंग क्लाइंट को बिल करता था, वी यूज्ड टू गेट 1 लाख 50% ऑफ दैट फीस फ्रॉम दलाल इंजीनियरिंग। तो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स काम जल्दी हो सकता है, फटाफट पैसा आता है, अच्छा पैसा आता है। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट join listening to my session must enter. If you are already into financial services, nothing greater than that, but if you are not financial services, आपको अगर फिनेंस प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स बनाना आ गया, सीएमए डेटा बनाने आ गया, वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए सीएमए डेटा बनाना पड़ता है, बट सीएमए डेटा इज मोर सिंपलर देन प्रोजेक्ट फाइनेंशियल। उसमें इतना डायनामिक बनाने की जरूरत नहीं है। वी विल डिस्कस सर्टेन अदर रेशियोज। कुछ अगर आपका क्वेश्चन होगा सीएमए डेटा के बारे में तो वी कैन डेफिनेटली टेक दोज क्वेश्चंस। यहाँ आज समय के जितना समय मिलेगा शायद अपन प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स का पार्ट ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो अपना स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो गया, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। उसमें अपने को मालूम पड़ गया कि 9.48 करोड़ प्रोमोटर को लाना है बाय मार्जिन, और 28 करोड़ का वर्किंग कैपिटल का लिमिट अपने को अप्लाई करना है। तो बेस्ड ऑन दैट अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो पहला स्टेप में बनाया था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 9.48 आ गया फिगर कि मार्जिन मनी टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, ये 9.48 मेरे यहाँ पर आप देखिए मैंने ब्लू मार्क करके रखा था, इसको वापस ब्लैक कर देता हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये 9.48 बोल्ड में लिखा है, वहां से ऑटोमेटिकली पिक्ड हो गया। जैसे 9.48 पिक्ड हो गया, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पहले 39.55 था, अभी 39.25 है, तो मीन्स ऑफ फाइनेंस भी ऑटोमेटिकली 39.25 होना चाहिए। यस 39.25 माय कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस विल ऑलवेज बी 10। तो हमने इस तरह से स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर लिया, टर्म लोन चार्ट बना लिया है, और बाद में मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल का भी बना लिया है। तो अपना 5वां स्टेप कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू पीपीटी। व्हाट इज माय 6th स्टेप, नहीं सॉरी 6th स्टेप हो गया, 7th स्टेप कंप्लीट द इंटरेस्ट वर्किंग इन वर्किंग रिजल्ट शीट्स। आपको ध्यान में होगा जैसे ही मैंने मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल बना लिया तो मुझे मालूम है मेरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसको 3 साल का आ गया, उसके बाद आप फ्रीज भी कर सकते हैं, कारण वर्किंग कैपिटल इज एवरी ईयर रिन्यूएबल। तो 3 साल का वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद प्रोजेक्ट फाइनेंशियल में उस वर्किंग कैपिटल अमाउंट को फिक्स कर दीजिए। उसके बाद जब थर्ड ईयर पे आप पहुंचेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो क्लाइंट के लिए आपको एनीवे एवरी ईयर सीएमए डेटा बनाना है, तो थर्ड ईयर में जब पहुंचेंगे तो आपको एडिशनल 2 साल का और प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का आपको सीएमए डेटा बनाने देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स में आप 3 साल का सीएमए डेटा में वर्किंग कैपिटल का फिक्स कर लीजिए, सो दैट यू कैन अराइव एट व्हाट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल। और हमने टर्म लोन चार्ट बना लिया तो हमको मालूम है
कि व्हाट इज माय इंटरेस्ट कॉस्ट टुवर्ड्स टर्म लोन। लेट्स गो टू द एक्सेल शीट, सी इंटरेस्ट फिगर हमने ऑटोमेटिकली डाला या नहीं डाला। ये मेरा एक्सेल शीट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी, पहला स्टेप में कंप्लीट किया। अभी रिसेंटली हमने मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल कंप्लीट किया, उसके पहले एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया, वर्किंग रिजल्ट स्टिल सेल्स किया एंड प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट किया और टर्म लोन चार्ट किया। तो अभी वर्किंग रिजल्ट्स को इन सेल्स तक किए थे, उसके नीचे अपने को ये देखिए सेल्स करने के बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिया एंड उसके बाद अपने को इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन डालना है। तो ये टर्म लोन का इंटरेस्ट कहां से आएगा, तो सिंपल टर्म लोन चार्ट में हमने डाल रखा है, वहां से हमको इंटरेस्ट का फिगर पिक करना है। देखिए वैसा ही पिक किया है मैंने, ये देखिए फर्स्ट ईयर, ध्यान रखिए फिगर, फर्स्ट ईयर 1.75 है, सेकेंड ईयर 1.64 है एंड थर्ड ईयर 1.35 है। तीन फिगर ध्यान में रखेंगे तो भी आएगा 1.75, 1.64, 1.35। यही फिगर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मेरे वर्किंग रिजल्ट्स में आना चाहिए। तो ये 1.75, 1.64, 1.35, तो ये डायनामिक है इस प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स का। वहां जो कैलकुलेशन आया है वहां से हमने पिक करके यहाँ डाल दिया। वर्किंग कैपिटल हमने एज्यूम किया जो वर्किंग कैपिटल लिमिट बनता है, देखिए वर्किंग कैपिटल का हमारा कुछ 28 करोड़ का लिमिट बना, तो 28 करोड़ का सैंक्शन आएगा, बट जनरली आपको भी मालूम है कि 28 का 28 करोड़ 365 दिन हम यूज नहीं कर पाए। तो एक एवरेज यूटिलाइजेशन आपको एज्यूम करना है कि 80% होगा कि 90% होगा कि 70% होगा। जनरली आपका अगर कोई सीसी लिमिट का आपने सैंक्शन दिया है तो एक पेनल क्लॉज रहता है कि योर एवरेज यूटिलाइजेशन शुड बी मोर देन 70%, अदरवाइज देयर विल बी पेनल्टी ऑन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट। तो हमने इस केस में एज्यूम किया 90%, तो हमने जितना वर्किंग कैपिटल का लिमिट्स एज पर मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल बना था उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके 90% यूटिलाइजेशन का मल्टीप्लिकेशन करके वी हैव अराइव्ड एट व्हाट इज माय इंटरेस्ट कॉस्ट टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट 3 इयर्स का तो मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में हमारा वर्किंग कैपिटल लिमिट डिसाइड था एंड 4th ईयर ऑनवर्ड्स आई हैव केप्ट इट कांस्टेंट बिकॉज ये जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको एनीवे वर्किंग कैपिटल का फिगर ईयर ऑन ईयर रिव्यू होगा, चेंज होगा, आपको ईयर ऑन ईयर पार्टी को, आपके क्लाइंट को, बैंक को देनी पड़ेगी सीएमए डेटा बना के एंड दे हैव टू जस्टिफाई व्हाट इज देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो प्रोजेक्शंस में लिया कोई जरूरी नहीं वही फिगर रहे, बट जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे तो वर्किंग होना चाहिए। और एक चीज जो मैं बोलना भूल गया था, आई वांट टू से कि बहुत सारे कंसल्टेंट को मैंने देखा है कि ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं लेते। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा अगर मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल आप पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं लोगे तो। इट मस्ट बी इन योर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसका कारण ये है कि 9.48 जो इस केस में आया है, तो योर क्लाइंट द प्रोमोटर ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट नो कि जब मैं ट्रायल रन स्टार्ट करूंगा तो टुवर्ड्स मार्जिन मनी मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में डालना पड़ेगा। इसका इट्स अ मार्जिन मनी विल बी नॉट फंडेड बाय बैंक, बैंक फंड करेगा आपका टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 75% और 60%, तो बैलेंस आपको पैसा लाना पड़ेगा। टर्म लोन में तो क्या है, प्रोपोर्शनेट डिसबर्समेंट जनरली होती है, तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा वैसे वैसे बैंक आपका कंट्रीब्यूशन भी आएगा, बैंक का कंट्रीब्यूशन आएगा एंड प्रोपोर्शनेटली काम बढ़ जाएगा। बट द डे यू स्टार्ट प्रोक्योर मटेरियल फॉर ट्रायल रन एंड कमर्शियल रन, तो आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आपका बैंक बोलेगा आपका 25-30 जो भी मार्जिन है वो लाओ, हमारे उसके सामने सीसी का डिसबर्समेंट लो। सीसी सैंक्शन रहती है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बट डिसबर्समेंट बेस्ड ऑन आपका मार्जिन मनी आएगा, प्रोपोर्शनेटली बैंक विल रिलीज देयर सीसी लिमिट। सीसी सैंक्शन रहेगा बट रिलीज बेस्ड ऑन योर ट्रायल रन एंड कमर्शियल रन, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, बेस्ड ऑन दैट दे विल रिलीज द लिमिट। तो प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स बनाते टाइम ध्यान रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल मार्जिन मस्ट बी इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन सो दैट योर क्लाइंट is aware of when trial run start, when commercial run start, he has to brought in additional money by your margin for working capital। नहीं तो उसका प्रोजेक्ट में क्या है, ये अगर नहीं लाया और प्रोमोटर्स को मालूम नहीं है, तो जब कमर्शियल प्रोडक्शन होगा और बैंक बोलेगा आपका मार्जिन मनी कहाँ है, तो ये अगर इनिशियली अपन फिगर आउट करके रखेंगे
तो योर क्लाइंट विल बी अवेयर ऑफ, ही विल मेड अरेंजमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे कि असावा जी आपने क्या कर दिया, हमको तो आपने बताया ही नहीं कि मेरे को और पैसा डालना है। और पैसा जब तक वो डालेंगे नहीं, बैंक सैंक्शन करेगा नहीं, और प्रोजेक्ट कई बार आधा अधूरा में बंद पड़ जाता है। तो इस तरह का प्रिकॉशन आपको लेना है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आपको वर्किंग कैपिटल मार्जिन का फिगर इट शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ सी व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। हमने इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन कर लिया, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली डेप्रिसिएशन है, बट अपन पीपीटी में देख लेते क्या है इसको। यस, कंप्लीट द डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। सी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको 2 डेप्रिसिएशन बनानी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बिकॉज वो बनाने के बाद ही आप यू कैन अराइव एट व्हाट विल बी योर एक्चुअल आउटफ्लो टुवर्ड्स इनकम टैक्स। तो ये तो सिंपल है, अपन बना लेते हैं कंप्लीट डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट। तो एक टेबल हमने बना रखा है, calculation of depreciation as per WDV basis. It can be SLM basis, it can be WDV basis, it can be your depreciation rate. I have picked up from schedule 14. It may be different, but as a chartered accountant you are the best knowledgeable person. What is the depreciation rate? हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लस कंटिजेंसी पकड़ के सारे कॉस्ट डाल दिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मिसलेनियस फिक्स एसेट, एक परसेंटेज WDV का करके फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने अराइव कर लिया 1.7। तो मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। जनरली क्या होता है, आपको भी मालूम है कि हर साल डेप्रिसिएशन आइदर प्रीवियस ईयर का 90 या 95% रहता है। तो आपको हर साल के लिए भी बना सकते हैं टेबुलर फॉर्म कि हर साल मेरा WDV डेप्रिसिएशन कितना आएगा, या एक साल बना लीजिए, बाद में उसका 90 या 95% नेक्स्ट ईयर डेबिट कीजिए, आपके प्रोजेक्शंस में डालिए, एंड एजम्पशन में लिख दिए वी हैव एज्यूम्ड सेकंड ईयर ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन विल बी 95 और 90% ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आपका काम खत्म हो गया। हाँ, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे, 50 करोड़ का, 25 करोड़ का, 100 करोड़ का टर्म लोन अप्लाई कर रहे, तो आई सजेस्ट यू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन चार्ट एज पर कंपनीज एक्ट ईयर ऑन ईयर। तो ये मेरा 1.78 आ गया है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेरा स्टेप नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सी मेरा क्या है, कंप्लीट द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने फॉर योर नॉलेज 1 साल के लिए बनाया कंपनीज एक्ट में, बट सारे साल के लिए, अगले 7 साल के लिए जहां तक प्रोजेक्शन है उसके लिए मैंने डेप्रिसिएशन बनाया है इनकम टैक्स एक्ट का टेबुलर फॉर्म में, जस्ट टू शो यू कि भाई इस तरह से कंपनीज एक्ट का भी बनाया जा सकता है और इनकम टैक्स एक्ट का, इसलिए मैंने टेबुलर फॉर्म में ईच ईयर का बनाया है। तो बिल्डिंग पे 10%, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में 15%, मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट में 15%, आपका एक ब्लॉक और हो सकता है जो कंप्यूटर, प्रिंटर, उसके ऊपर 40% है, तो आप वो कॉलम ऐड करिए। बेसिक पर्पज इज we need to arrive at what is my depreciation as per income tax act। तो ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मैंने 10-15% से मल्टीप्लाई करके ईयर ऑन ईयर डेप्रिसिएशन निकाल लिया एंड क्लोजिंग ब्लॉक भी, नेट क्लोजिंग WDV निकाल लिया। तो ये डेप्रिसिएशन का फिगर दोनों चार्ट कंप्लीट हो गया है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम कंपनीज एक्ट में मैंने 1 ही साल का बनाया है, बाद में हमने एज्यूम कर लिया है कि हर साल उसका 90 या 95% आएगा। बट फॉर शोइंग यू डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ईयर। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट द इनकम टैक्स वर्किंग। एक बार कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन आ गया, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन आ गया, तो आपको इनकम टैक्स कितना लायबल होगा, जो आउटफ्लो होगी। आजकल तो डेफर्ड टैक्स के कारण प्रोविजन पूरा करना पड़ता है, बट वी आर कंसर्न्ड विद व्हाट विल बी माय एक्चुअल पेमेंट। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी वही निकालते, बिकॉज दैट विल गो टू इवन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंप्लीट द इनकम टैक्स वर्किंग, सिंपल है एकदम। हमने इनकम टैक्स वर्किंग ऐसे बना रखा है, आपको दिखा देता हूँ। ये कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो हमने जब वर्किंग रिजल्ट्स कंप्लीट किया है तो पीबीटी आ गया था, तो पीबीटी के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट है उसके साथ कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन ऐड किया, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन लेस किया। वी हैव अराइव्ड एट कि भाई इनकम टैक्स के हिसाब से तो फर्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, और मेरा फर्स्ट ईयर टैक्स लायबिलिटी 0/0 है। तो ये अगर कैलकुलेशन हो गया तो अपन वर्किंग रिजल्ट्स के बाकी चीजें भी कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स गो टू वर्किंग रिजल्ट शीट्स, डेप्रिसिएशन और
इंटरेस्ट ऑलरेडी कर लिया था, अभी डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग रिजल्ट्स का पहला सीट है, सेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वर्किंग कैपिटल कर लिया, ये कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, एक चीज रह गया था हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको इक्वली राइट ऑफ करना था, वो मैंने कर लिया है, एंड उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सीट थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैंने 2 में डिवाइड कर दिया है, ये सेकंड पेज यहाँ बनाया है, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ लेके आए, जो इनकम टैक्स के हिसाब से देखिए फर्स्ट ईयर 0 था तो मैंने 0 ले लिया, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो इनकम टैक्स का मेरा प्रोविजन है वो ले लिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जनरली इन केस ऑफ टर्म लोन bankers doesn't allow you to pay dividend during the tenure of term loan, तो हमने dividend 0% करके डिविडेंड नील कर रखा है, ये मेरा रिटर्न प्रॉफिट एट डेप्रिसिएशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आई हैव अराइव्ड एट नेट कैश एक्रूवल्स एंड देन certain ratios जो you are also aware of, operating profit के divided by sales operating ratio and net profit divided by sales is net profit ratio, interest coverage, जितना अपना कैश एक्रूवल्स है, जितना इंटरेस्ट लायबिलिटी है, हाउ मेनी टाइम्स वी आर अर्निंग towards our interest liability, debt equity ratio सिंपल है, debt divided by equity, एसेट कवरेज रेशियो इतना है, जितना फिक्स एसेट हमने प्रोजेक्ट में लगाया उसके सामने टर्म लोन कितना लिया हुआ है, और डीएससीआर रेशियो अपने को सेपरेटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएससीआर रेशियो बैंक के हर प्रोजेक्ट फिनेंशियल में 5 पेज का हो, 10 पेज का हो, एनी टर्म लोन एप्लीकेशन बैंक विल आस्क फॉर डीएससीआर रेशियो। अभी थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली जब आप प्रोजेक्ट फिनेंशियल बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी एट नैरो रेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि भाई पहला साल 4.5%, दूसरे साल 7%, तीसरे साल 6%। दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनहेरेंट मिस्टेक इन योर प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स। मेरे केस में देखिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक नैरो रेंज में रहता है, 4.44, हाईएस्ट 4.58 गया है, लोएस्ट 4.35 गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक नैरो रेंज में घूमता है, 100 बेसिस पॉइंट्स के ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट रेशियो जो होगा ऑलवेज इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। देखिए ये 6-9% से बढ़ के 1.09, 1.33, 1.50 धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज पे होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स में बनाते टाइम ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नैरो रेंज, net profit always increasing trend, otherwise there is some inherent weakness or inherent mistake in your project financials। अब आया लास्ट में डीएससीआर, ये अपन सेपरेटली देखेंगे कैसे बनाते हैं डीएससीआर। नेक्स्ट नाउ सी व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। प्रोबेबली नेक्स्ट स्टेप वुड बी कैश फ्लो। Yes, complete the cash flow statement. Take source of funds from means of finance, profit before taxation with interest added back, depreciation and PP expenses from working results, and working capital borrowing from working capital margin. तो cash flow कैसे बनानी है? जो हमारा means of finance है, that is for my cash flow, it is source of funds, and जो हमारा profit कमाया है, cash profit कमाया है, that is my source of fund। एंड आउटगो कैसे डिसाइड होगा? जो हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है एंड जो हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए करंट नेट करंट एसेट जाएगा, वो मेरा आउटफ्लो है। तो कैश फ्लो बनाना एकदम सिंपल है। लेट्स गो टू कैश फ्लो। ये मेरा वर्किंग रिजल्ट्स कंप्लीट हो गया। डीएससीआर आपको सब सेपरेटली समझाऊंगा। ये मेरा बाजू में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है। व्हाट आई हैव डन, जो मेरा मींस ऑफ फाइनेंस है वहां से मैंने पिक कर लिया, शेयर कैपिटल कितना रहेगा, टर्म लोन कितना रहेगा, क्वासी इक्विटी कितना रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन विद इंटरेस्ट एडेड बैक कितना रहेगा, वर्क मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल बनाया था तो उसमें मुझे मालूम था मेरे को वर्किंग कैपिटल का कितना लिमिट सैंक्शन होएगा, तो वो मैंने ले लिया 28.43। एंड जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो मैंने ऐड कर लिया, बिकॉज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो यू हैव टू अराइव एट व्हाट विल बी कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैंने ले लिया डेप्रिसिएशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड डिस्पोजिशन ऑफ फंड सिंपल है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से आपको मालूम है उस प्रोजेक्ट में आपका फिक्स एसेट के लिए कितना खर्चा लगेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कितना खर्चा लगेगा। मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में हमने नेट करंट एसेट बनाया था, वो फिगर ले लिया, कारण उसके सामने ये वर्किंग कैपिटल लिमिट यहाँ है। एंड आपका टर्म लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होगा, टैक्स कोई लायबिलिटी है कि नहीं, एंड यू अराइव दैट व्हाट इज योर कैश फ्लो एट द ईयर एंड। सिंपल है एकदम कैश फ्लो स्टेटमेंट।
वापस एक बार बोल देता हूँ, सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ से आएगा, तो मीन्स ऑफ फाइनेंस से सोर्स ऑफ फंड आएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर है, रिटेन प्रॉफिट का फिगर है, वो आपके वर्किंग रिजल्ट से आएंगे। एंड डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको एड बैक करना है बिकॉज दीज आर नॉन कैश एक्सपेंसेस। एंड डिस्पोजिशन ऑफ फंड्स में जो फिक्स एसेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में है उसको लेना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जो जो एसेट है, फिक्स एसेट्स भी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है, और मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल से आपको मालूम है कि नेट करंट एसेट कितना रहेगा, वो नेट करंट एसेट यहाँ डाल दिया। एंड देन बिकॉज यहाँ इंटरेस्ट को एड बैक किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन विद इंटरेस्ट को एड बैक किया है, तो यू हैव टू इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो में डालना पड़ेगा। टैक्सेस की लायबिलिटी अपन ने निकाला ही है, वर्किंग रिजल्ट्स में आया, डिविडेंड 0 है, तो यू नो एट द एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैश बैलेंस क्या रहेगी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपने टर्म लोन इक्वली 6 साल में, हमारा 24 इंस्टॉलमेंट था, तो ये 6 साल में हमारा टर्म लोन इक्वली रिपे हो गया, तो वो कैश फ्लो में आपको दिखानी पड़ेगी। सब ऑटोमेटिक फॉर्मूला है, बिकॉज आपका टर्म लोन चार्ट से आपको मालूम है, वो आपने फिगर यहाँ डालनी है, दैट्स ऑल। तो आपका ये कैश फ्लो बन गया। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। अगेन वेरी सिंपल, एवरीबडी यू एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेयर ऑफ, ओनली थिंग इज दैट आई एम गिविंग यू what will be the linkage so that you can prepare one dynamic project financials। ये शेयर कैपिटल अगेन मीन्स ऑफ फाइनेंस है, ये शेयर कैपिटल है। अनसिक्योर्ड लोन जो मीन्स ऑफ फाइनेंस में है। रिजर्व एंड सरप्लस आपका रिटेन प्रॉफिट, ईयर एंड आफ्टर जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, क्रेडिट बैलेंस लाइन इन प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, वही फिगर है रिजर्व एंड सरप्लस। हमने क्या किया, ये फर्स्ट ईयर का रिटर्न प्रॉफिट है एंड सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का रिटर्न प्रॉफिट प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, तो ऐड करते क्यूमुलेटिव रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। ये टर्म लोन का फिगर है, फर्स्ट ईयर जितना आपने टोटल सैंक्शन लिमिट विथड्रॉ किया है वो टर्म लोन का फिगर आ गया। एंड देन जो जो जैसे जैसे रिपेमेंट हुआ, आपको देखिए 7वां और 8वां साल में ये नील हो गया 6 साल रिपेमेंट करने के बाद। ये यहाँ 3 करोड़ कम हो गया, ये आपका 6 साल में पूरा टर्म लोन 0/0 हो गया। संडी क्रेडिटर्स आपको मालूम है, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में कैश फ्लो में क्या किया, नेट करंट एसेट लिया, बट बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज दोनों लेने पड़ेंगे। तो ये करंट लायबिलिटीज में मेरा संडी क्रेडिटर्स आ गया। एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, सी कैश फ्लो से कैश फ्लो में अपन ने ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट लिया है, यहाँ बैलेंस शीट में ऑफकोर्स नेट ब्लॉक ऑफ एसेट लेने पड़ेंगे, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज टू दैट एक्सटेंट योर कैश बैलेंस इज मोर टू द एक्सटेंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस। रिटर्न प्रॉफिट से मतलब कैश प्रॉफिट इज योर कैश एंड बैंक बैलेंस एंड दैट्स व्हाई वी आर नेट ब्लॉक दिखाना पड़ेगा। दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो मैंने ये लेस डेप्रिसिएशन कर लिया, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। एंड मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में मेरा इन्वेंट्री में 3 चीज का इन्वेंट्री था, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, उन तीनों को जोड़ के हमने इन्वेंट्री निकाल लिया। उसके बाद संडी डेटर्स, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में हमने दिखाया था 3 महीने की उधारी देंगे तो हमारी डेटर्स लेवल क्या रहेगी। एंड कैश फ्लो से हमने कैश एंड बैंक बैलेंस ले लिया। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ करने के बाद जो बचता है वो इंटेंजिबल एसेट के रूप में एसेट साइड में ले लिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब अगर मेरा सारा चीज सही है तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट शुड बी 10। लेट्स सी, ये मैंने फॉर्मूला दे रखा है एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड का डिफरेंस, यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस। एंड डिफरेंस इज बोल्ड विद नील डिफरेंस। ये मेरा डिफरेंस रह गया 0/0। तो मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाया है उसका डायनामिज्म भी काम कर रहा है और हमारा बैलेंस शीट में कुछ भी चेंज करो ऑटोमेटिकली टैली है। अभी 1-2 चीजें और है वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन वेरियस चेंजेस करेंगे और कुछ समय रहेगा तो क्वेश्चन आंसर लेंगे। मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक आपको बताया था मैंने, DSCR कैलकुलेशन, ये जरूरी है, सिंपल है, यू नो दीज आर ऑल बुक नॉलेज। व्हाट यू हैव टू डू, नेट कैश एक्रूवल्स, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऐड करना है और रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन डिवाइडेड बाय प्लस एडेड विथ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो A डिवाइडेड बाय B इज योर DSCR रेशियो एंड योर एवरेज DSCR रेशियो इज, तो ऑल ईयर का एवरेज कर लो तो एवरेज DSCR रेशियो हो जाएगा। DSCR रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है इन केस ऑफ टर्म लोन, इन केस ऑफ एनी लोन अप्रेजल। DSCR रेशियो आइडियली क्या होना चाहिए, 1.5 से 2 के बीच में एवरेज DSCR होना चाहिए। एंड एनी गिवन ईयर DSCR should not fall below 1.10।
वन से नीचे आएगा तो आप तो डिफॉल्ट करोगे, बिकॉज उतना आपका जितना कैश जनरेशन है उससे ज्यादा आपका डेट सर्विस मतलब इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट है, तो यू विल डिफॉल्ट। देखिए यहाँ हमने एक बॉर्डर लाइन केस आया है सेकेंड ईयर में 1.14, जनरली 1.10 से नीचे नहीं आना चाहिए, एवरेज डीएसीआर 1.5 to 2 आना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो बैंक आपको बोलेगा, अगर सपोज ये 3 आ गया तो बैंक ये बोलेगा कि भाई आप रीपेमेंट पीरियड थोड़ा सा कम करो, सो दैट योर डीएसीआर इज टू हाई। 3 का डीएसीआर की जरूरत नहीं है, हमको 2 तक ही चाहिए, तो आपका रीपेमेंट पीरियड कम करेगा। एंड सॉरी एंड आपका एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड नॉट फॉल बिलो 1.10, दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ डीएसीआर। कई बार क्या होती है कि बैंक बोलता है 1.5 से 2 आपका 2 मेरा डीएसीआर चाहिए, और हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, एक्चुअल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, मालूम पड़ा 1.40 आ रहा है, तो क्लाइंट बोलता है यार प्रोजेक्शंस को बढ़ा दो और डीएसीआर को 2 तक लेके आओ। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। आपका अगर 5 साल के रीपेमेंट में या 6 साल के रीपेमेंट में डीएसीआर नहीं रेशियो बैठ रहा है, तो आप रीपेमेंट पीरियड को बढ़ाइए, सो दैट डीएसीआर रेशियो, जितना लंबा रीपेमेंट रेशियो होगा डीएसीआर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। आप यहाँ 6 साल से पेमेंट कर रहे हैं तो 6 साल का 3.23 करोड़ इज योर एवरी ईयर रीपेमेंट, ये अगर 7 साल का रीपेमेंट होगा तो 3.23 से कम हो जाएगा, तो आपका डीएसीआर रेशियो इंप्रूव करेगा। और एक तरीका डीएसीआर इंप्रूव करने का ये है कि आप बैलूनिंग रीपेमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई मेरा उतना जनरेशन नहीं होगा, तो आप रीपेमेंट को थोड़ा बैलूनिंग कर लीजिए, इनिशियल ईयर में कम रीपेमेंट कीजिए और आगे के ईयर में ज्यादा रीपेमेंट कर दीजिए। व्हेन योर बिजनेस गॉट मैच्योर्ड यू हैव बेटर कैश फ्लो, तो रीपेमेंट को बाद में थोड़ा बढ़ा कर दीजिए, वो एक तरीका है। कभी भी आप ध्यान में रखिए डीएसीआर रेशियो को मैच करने के लिए प्रोजेक्शंस को नहीं बढ़ाइए, मतलब जो एक्चुअल फिगर आ रहा है उसके बेसिस पे आप वर्कआउट कीजिए। अगर डीएसीआर कम आ रहा है तो बढ़ाने के तरीके लेजिटिमेट हुए है, ना कि आप सुपरफिशियल प्रोजेक्शंस को बढ़ा के डीएसीआर मैच करके आप बैंक को सबमिट कर देवे, शायद बैंक आपको टर्म लोन सैंक्शन कर देवे। बट मैं आई हैव सीन प्रैक्टिकल केसेस जहां किसी कंसल्टेंट ने प्रोजेक्शन सुपरफिशियल देके बैंक से सैंक्शन ले लिया एंड दूसरे साल तीसरे साल अकाउंट एनपीए हो गया, बिकॉज एनपीए इन द सेंस अकाउंट हैज टू रिस्ट्रक्चर, एंड उसके बाद एक बार अकाउंट में रिस्ट्रक्चर का ठप्पा लग गया तो नो अदर बैंक टचेस इट, एंड बाद में कैश फ्लो इतना सुंदर होने के बाद भी हर बैंक ने यही बोला कि भाई सर अकाउंट पुराना रिस्ट्रक्चर है, आपके पास फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन का सैंक्शन है, बिकॉज दैट टाइम यू हैव नॉट एबल टू सर्व योर डेट एंड इंटरेस्ट, तो आपने बैंक ने उसको कन्वर्ट करके आपको टर्म लोन दिया है सो दैट यू कैन उनका अकाउंट एनपीए नहीं हो जाए। तो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है, रिस्ट्रक्चर अकाउंट में कोई अदर बैंक टच नहीं कर सकता। मेरे प्रैक्टिकल केस में ये हुआ था, आई हैव सैंक्शनड one of my client approached me for their running college project. They were having limits from one nationalized bank where rate of interest was 13% and prevailing rate of interest was 9.5-10%, and they have a huge borrowing of 60 crores, 200 crore का सिक्योरिटी रहने के बाद भी एंड कैश फ्लो इतना अच्छा होने के बाद भी कोई दूसरा बैंक टच ही नहीं करना चाहा आसानी से। बाद कोई दूसरा बैंक उस लिमिट को, कई बार तो क्या है बैंक की पॉलिसी में रहती है कि यू कैन नॉट टेक ओवर रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट, तो समझ लो अभी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कैश फ्लो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपको मालूम है सिक्योरिटी पैरामीटर्स में अच्छे हैं, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे है, उसके बाद भी बहुत सारे बैंक आपका लोन टेक ओवर नहीं कर सकते, आपको इंटरेस्ट सेविंग नहीं दिला सकते। ये केस हमने बड़ी मुश्किल से किया था। उस केस में मुश्किल ये थी कि जब ओरिजिनल बैंक से सैंक्शन लिया था नेशनलाइज्ड बैंक से, तो उसने 7 साल का रीपेमेंट दिखाया था। जनरली कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल के प्रोजेक्ट में रीपेमेंट 10 साल का चाहिए, मोरेटोरियम 2 से 3 साल का चाहिए, बिकॉज तब तक उतनी कैश फ्लो जनरेट नहीं होती। तो उसके कारण जस्ट बैंक ने बोला हमको 2 साल का 7 साल का ही लोन देंगे, तो उन्होंने थोड़ा प्रोजेक्शन बढ़ा के डीएसीआर को ठीक करके बैंक से सैंक्शन तो ले लिया, पर तीसरे साल जाके प्रॉब्लम हुआ। आपका नाम खराब होगा बैंक के साथ कि भाई इन्होंने असावा ने दिया था ये प्रोजेक्ट टर्म लोन सैंक्शन किया था। सी लीगली यू आर नॉट लायबल बट मॉरली यू आर लायबल टू बैंक, यू हैव टू डू मच वर्क। जनरली फाइनेंशियल सर्विस में क्लाइंट, रिपीट क्लाइंट बहुत कम होते हैं,
तो आपके हर बार नए नए क्लाइंट आएंगे। बैंक आपके पास लिमिटेड है एंड बैंक में इतने ज्यादा स्टाफ टर्नओवर होता है। आज जो एक्सिस बैंक में है, कल आईसीआईसीआई में रहेगा, परसों और कोई बैंक में रहेगा, और आपका एक भी केस अर्ली मोर्टेलिटी या एनपीओ हो गया तो बोलेगा यार ऐसा जी आपने पहले भी एक टर्म लोन कराया था, उस बैंक में मैं था और वो अकाउंट एनपीओ हो गया, तो आपका ड्यू डिलिजेंस बराबर नहीं है, तो आपका रेपुटेशन खराब होगा बैंक के साथ। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सुपरफिशियल प्रोजेक्शन देके डीएसीआर को एडजस्ट मत कीजिए। एक्चुअल डीएसीआर जो आ रहा है, बैंक को कन्विंस कीजिए कि मेरे को ये डीएसीआर आ रहा है, तो ये ऊपर थोड़ा डीएसीआर को ठीक करने के लिए मेरे को रिपेमेंट बढ़ा चाहिए या बैलोनिंग रिपेमेंट चाहिए। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको बता देता हूं एंड देन वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लिया, रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन कर लिया, इनकम टैक्स कर लिया। ये ब्रेक इवन पॉइंट which we have done even during our CA course, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट था ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस कब का बनाना चाहिए? जिस दिन आपका प्रोडक्शन मैच्योर्ड हो रहा है। तो इन आवर केस इट इज 3rd ईयर, तो हमने बेस्ड ऑन 3rd ईयर वर्किंग्स, सिंपल है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, देन आई नो माय कंट्रीब्यूशन, तो हमने पीवी रेशियो निकाल लिया एंड यू नो योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, डेप्रिसिएशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू टर्म्स में आ गया। कैश ब्रेक इवन बिकॉज उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करना है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, कैश ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो ये बीईपी एनालिसिस जरूरी है। एंड एक आपको देना चाहिए समरी फाइनेंशियल्स, जहां उसको जिसको बोलते हैं समरी एट ए ग्लांस। तो क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी, प्रोबेबली मे बी जीएम और वाइस प्रेसिडेंट, व्हाटएवर हिज डेजिग्नेशन, ही डजंट हैव टाइम टू गो आफ्टर 50 पेज रिपोर्ट और 70 पेज रिपोर्ट। उसके पास ब्रीफ एग्जीक्यूटिव समरी आ गया, 2 पेज का नोट आ गया, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, उसके साथ आपने समरी फाइनेंशियल्स दे दिया, तो उसमें उसको दिख जाएगा कि हाँ भाई ऐसा सेल्स है, ऐसा नेटवर्थ है, ऐसा डेट इक्विटी रेशियो है, ऐसा डीएसीआर है, ऐसा बीएपी है, एंड उसको बैंक में पैरामीटर्स में फिट बैठता है। तो वो 2 पेज का 4 पेज का चीज देख के आपके नीचे वो ऑर्डर पास करता है कि भाई इस प्रोजेक्ट को आप अप्रेजल के लिए लो, डिस्कस करो सारा पैरामीटर्स में, इसको समझो, परखो, एंड देन यू गो अहेड। तो ये समरी फाइनेंशियल, इसलिए कोई ये पार्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट जो फॉर्मेट इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है समरी फाइनेंशियल्स आप बना के दो, बट हम लोग हमेशा समरी फाइनेंशियल बनाते हैं। इट कैन बी पार्ट ऑफ 2 पेजर नोट विद एग्जीक्यूटिव समरी के साथ समरी फाइनेंशियल। तो जो सीनियर आदमी है उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है, वो पूरा 70 पेज 80 पेज का आप रिपोर्ट दे देंगे, सर ये प्रोजेक्ट लगाना है, आपको टर्म लोन का सैंक्शन करना है, वो प्रोबेबली 15-20 दिन 25 दिन उसके टेबल पे पड़ा रहेगा। 3 पेज का अगर रिपोर्ट उसके पास पहुंचा, समरी उसने देख लिया, उसको ऊपरी ठीक लगी, तो नीचे वो बोलेगा इसको प्रोसेस करो। जो भी उनके लोन ऑफिसर है उनको बोलेंगे, आरएम होते हैं प्राइवेट बैंक में, तो उनको बोलेंगे भाई इसको प्रोसेस करो, या क्रेडिट एनालिस्ट होती है उनको बोलते हैं कि भाई इसको प्रोसेस करो, क्या इंफॉर्मेशन हो चाहिए देखो, एंड देन बेस्ड ऑन आवर रेटिंग एंड ऑल वी विल सैंक्शन और नॉट सैंक्शन। बट टू पुश द फर्स्ट गेट यू नीड टू हैव समरी फाइनेंशियल्स, एग्जीक्यूटिव समरी के साथ आपको समरी फाइनेंशियल देना चाहिए। बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट पार्ट। अभी अपन देख लेते हैं, जो मैं क्लेम करता हूं, मैं दावा करता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स सुपर डायनामिक है। आप कुछ भी चेंज करो, कुछ भी, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट चेंज। अपन 4-5 छोटे-छोटे चीज चेंज करके देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके आप देख सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, डीएसीआर रेशियो क्या बढ़ रहा है, खूब बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हो रहा है। बट ये चेंज करते टाइम अगर डायनामिक नहीं होगा तो क्या होगा, एक बार कोई फिगर चेंज किया, सपोज लो कॉस्ट मीन्स ऑफ फाइनेंस में आपने कैपिटल चेंज किया, अगर डायनामिक होगा तो ऑटोमेटिकली सेफ चेंज हो जाएगा। अगर डायनामिक नहीं होगा तो आपको बैलेंस शीट में जाके देखना पड़ेगा, अरे उधर चेंज हुआ क्या, कुछ ना कुछ भूल जाओगे, बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, और सर पकड़ के बैठने के बजाय आप जब बना रहे हो पहली बार उसी टाइम इतना डायनामिक बना लो ताकि कुछ चेंजेस करने भी पड़े। और कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते इनिशियल बना लेते हैं, उसके बाद उसके कंसल्टेंट अपने से चेंज करवाते नहीं, ये होगा ये नहीं होगा, कॉस्ट कोई बढ़ गया कम हो गया, टर्म लोन अपने को कम लेना है कि ज्यादा लेना है, ये सारे आपको उनके जो टेक्निकल कंसल्टेंट है वो बताते रहते हैं। एंड वो आपको चेंज मिनटों में होनी चाहिए, नहीं तो आपके समय और एनर्जी बहुत ज्यादा जाएगी। तो हम चेंज करके कुछ देखते हैं। जैसे सबसे पहले चेंज करते हैं अपन, पहला जो स्टेप था कि भाई टर्म लोन का फिगर चेंज करते हैं। हमने एज्यूम किया
कि टर्म लोन 75% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट एंड कंटिजेंसी और लैंड एंड बिल्डिंग का 60%। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को भी 75% कर देंगे। यहाँ देखिए 60% है, मैं इसको 75% कर दिया। जैसे ही 75 किया मेरा टर्म लोन का फिगर बढ़ गया, ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल कम हो गया। ये देखिए ये 39.25, ये 39.25 दोनों टैली है। अब देखते हैं हमारा बैलेंस शीट टैली है कि नहीं। ये फिगर तो हमने चेंज किया, ऑटोमेटिकली सब जगह चेंज होना चाहिए। कहाँ चेंजेस होगा? ऑलमोस्ट एवरी शीट विल गेट चेंज, बिकॉज टर्म लोन चार्ट में यहाँ से फिगर पिक होनी चाहिए तो ही बैलेंस शीट टैली होगी। शेयर कैपिटल यहाँ से जाएगा बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में अनसिक्योर्ड लोन यहाँ से जाएगा कैश फ्लो बैलेंस शीट में, कैश फ्लो भी टैली होगी, बैलेंस शीट भी टैली होगी। हमने चेंज करके देखा whether it has been changed or not. ये मेरा कैश फ्लो हो गया, ये मेरा बैलेंस शीट है। आप देखिए बैलेंस शीट देयर इज नो डिफरेंस, 0/डिफरेंस, मतलब ऑटोमेटिकली एवरीथिंग गॉट चेंज। आपको सिंपल देखना है तो टर्म लोन चार्ट में भी मैं आपको देखता हूँ। ये फिगर देखिए 21.21 हो गया, जैसे ही वहां चेंज किया तो मैंने यहाँ पर 21.21 हो गया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और कुछ चेंज करके देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स ऑफ फाइनेंस हो गया। से सैंडी डेटर्स हम देखते हैं कि भाई 3 महीने की जगह 2 महीना का, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे के फिगर सारे चेंज हो जाएंगे। ये तीनों फिगर चेंज हो जाने चाहिए। 37.90, 2.48, तो मैं इसको 2 महीना कर, 2 महीना करते ही ये 24.87, 1.865, तो आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट कम हो गई, आपका ओवरऑल नेट करेंट एसेट कम हो गया, आपका मार्जिन मनी कम आएगी। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ये 6.22 हो गया, देखिए ये ऑटोमेटिकली 6.22 हो गया। ऑटोमेटिकली आपका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट चेंज हो गया, तो मीन्स ऑफ फाइनेंस चेंज हो गया। एंड नाउ सी द बैलेंस शीट, इट शुड बी टैलीड अगेन, 0/0 डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। ये फॉर्मूला दिया हुआ है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, again there is no difference, not a single 0.01% का भी डिफरेंस नहीं है। अभी कुछ चेंजेस और करके देखते हैं, एक आध चीज से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को चेंज करके देखते बैलेंस शीट टैली रहता है कि नहीं है। आपका 75, 80 और 90% था, तो मैं काम करता हूँ 75, 85 एंड 95 करता हूँ। तो आपका सेल्स फिगर चेंज होना चाहिए, सब ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल, एंड देन आल्सो योर बैलेंस शीट शुड बी टैली। ये बैलेंस शीट टैली। और हर बार पहले देखिए कुछ डीएसीआर चेंज हो रहा था, डीएसीआर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जैसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा 1.58 समथिंग था, अब 1.87 हो गया, मोर बेटर हो गया है। तो ये है डायनामिज्म। आप कहीं से भी कुछ भी चेंज करें तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एवरीथिंग ऑटोमेटिकली गेट चेंज, सो दैट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू डू नॉट हैव एनी हेडेक टू डू मल्टीपल चेंजेस। इनफैक्ट आप असाइनमेंट लेते टाइम बोल सकते हैं कि माय फीस विल बी से 1 लाख रुपीज and there will be no additional cost for multiple changes to be done in project report till first 1 month। आपको मालूम है, आपको तो चेंज करने में 2 मिनट लगेगा, तो आप उसको थोड़ी मालूम है, उसको तो ये मालूम है हाँ अरे मेरा चार्टर्ड अकाउंट 4 बार भी चेंज हुआ, 1 महीने में जितने बार भी चेंज कराऊं वो चेंज करा के दे देगा, तो ठीक है यार रीजनेबल फीस कोट कर रहा है 1 लाख एक्सेप्ट। तो आपका जब आप कोटेशन दे रहे हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, आपका ऑफर लेटर दे रहे हो, तो आप उस तरह से दे सकते हो कि आई कैन डू मल्टीपल चेंजेस इन प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स से फॉर 1 मंथ, और मे बी आप लिख सकते हो मल्टीपल चेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट फॉर 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जैसा आपको ठीक लगे। क्लाइंट का नेचर और क्लाइंट का बिजनेस मॉडल देख के आप उस तरह का कोटेशन दे सकते हो। आपको मालूम है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेंज होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। So I think we should go ahead with question and answer session. I can stop sharing and कुछ question and answer session में अगर कुछ और कुछ चीजें आएगी तो we can discuss। बेसाडा जी, परवीन बांगड़ जी। यस सर। सर सबसे पहले पूछा गया एक्सेल शीट मिलेगी क्या?
100% मिलेगी। मेरा क्या काम है, नॉलेज गेन, नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज गेन, आपको दे देंगे। बट मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर लॉक करके देंगे एक्सेल शीट तो ज्यादा मजा आएगा आपको, कारण आप अपने हाथों से बनाओगे। और मेरे एक्सेल शीट में आप एडिट करने जाओगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे तो आपको सर पकड़ के बैठ जाओगे, तो आप बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाओगे। बट आपको जैसी इच्छा, आपको अगर विदाउट लॉक चाहिए तो आई विल गिव यू विदाउट लॉक, आई विल मेल इट टू योर कंसर्न ब्रांच ईमेल आईडी। आप इन टर्म्स यू कैन शेयर विथ ऑल पार्टिसिपेंट, कारण इंडिविजुअली शायद सबको एंटरटेन करना समय के अभाव में नहीं होना चाहिए, नहीं हो, मतलब पॉसिबल नहीं होगा। ये मैं स्टेप जो लिखे थे एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, ये सब मैनुअली बोल के गया था मैं। एंड यू आर गुड टू गो, यू कैन सेव माय नंबर। आप अगर व्हाट्सएप में आपका ईमेल आईडी मैसेज देंगे तो प्रोबेबली आई कैन आल्सो मेल इट टू यू, सिंस पार्टिसिपेंट्स आर नॉट मोर। बट कभी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट होते थे तो दिक्कत आती थी सबको इंडिविजुअली मेल भेजना। जिसको भी चाहिए आप या तो ब्रांच से ले लीजिए, ब्रांच को तो मैं आज ही शाम को या कल सुबह तक मैं मेल कर दूंगा। एंड अगर आपको लगता है नहीं, टाइमली नहीं मिल पाया, तो इंडिविजुअली आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज या मेल भेज सकते हैं। आई विल ट्राई एंड सेंड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आई हैव आंसर्ड योर फर्स्ट क्वेश्चन। यस, जैसे ही आपके पास से मिलेगी सर, हम ब्रांचेस से जो भी पार्टिसिपेंट ने रजिस्टर्ड किया है उनको भी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन? नो सॉफ्टवेयर, यू हैव टू, यू मस्ट प्रिपेयर एंड यू शुड प्रिपेयर इन एक्सेल शीट, क्योंकि काफी कस्टमाइज होता है, इसलिए एक्सेल शीट में यूज किया हुआ अच्छा। जी, आप एक्सेल शीट यूज किया हुआ अच्छा। एक तो क्या होगा, आपको हर फिगर ध्यान में रहेगी, कौन सा फिगर कहां से है। अभी बैंक से जब डिस्कस करेंगे, अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इनपुट डालने पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेंज करता है, बट कैसे चेंज किया आपको नहीं मालूम पड़ता, बिकॉज वो इंटरनली होता है। राइट, आउटपुट जो वो चेंज करके आउटपुट फेंक देता है, बट यू डोंट नो ये फिगर कहां से है। बट एक्सेल शीट में बनाया तो आपने फॉर्मूला दिया, आपको मालूम है कौन सा फिगर कहां से आया। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर इन एक्सेल शीट। पिछले 25 साल से तो मैं इसी में ही बना। Can we keep separate working for working capital margin, that is facility wise? नहीं, बेसिकली मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल का चार्ट इसलिए बनाना है, ये बेसिकली इट विल अराइव एट फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। तो उसमें आपका जो मार्जिन लगने वाला, प्रोमोटर्स को जो लाना वाला है, वो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल आपको बनाने ही पड़ेंगे और उसके बेसिस पे होगा। अब जो वर्किंग कैपिटल का एप्लीकेशन जाएगा अलोंग विथ टर्म लोन, तो वहां आप अलग से सीएमए डेटा बना सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि फंड बेस्ड लिमिट एज पर माय प्रोजेक्शंस ये होना चाहिए। साथ में नॉन फंड बेस्ड लिमिट चाहिए, जैसे आप कैपिटल गुड इंडस्ट्री में हो तो आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है, आपको रिटेंशन मनी गारंटी देनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको नॉन फंड बेस्ड लिमिट आपको लेनी पड़ती है। तो दैट विल बी एप्लीकेशन वाइज सेपरेट, जस्टिफिकेशन विल बी सेपरेट, बट मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल वो वर्किंग यहाँ करनी पड़ेगी, which will arrive at what kind of margin your promoters, your client has to brought in during at the time of start of your production। तो आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तो आपका क्लाइंट भी अवेयर होता है कि भाई आगे पीछे मेरे को इतना पैसा वो डालना पड़ेगा टू फंड माय वर्किंग कैपिटल मार्जिन। तो इट इज मस्ट। हाँ, आपका वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन सेपरेटली जाएगा बैंक के पास, सीएमए डेटा में लिंक होगा, सेल्स फिगर वगैरह सारा चीज आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लिंक कर दो, बट नॉन फंड बेस्ड के लिए अलग से आप जस्टिफिकेशन बना के दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ टू मेक अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। शायद अभी वो बॉस डीसीएफ इटसेल्फ इज वो वैल्यूएशन का पार्ट है, शायद समय अभी मैंने तैयारी करके नहीं आई। डीसीएफ हमको करना पड़ता है, जब आजकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी शेयर प्लेसमेंट करो, आपस में ट्रांसफर करो, पहले जैसा रहा नहीं। यू मस्ट, इट शुड accompanied by valuation, और वैल्यूएशन में डीसीएफ इज द वन ऑफ द मेथड वेयर सबसे एक्यूरेट भी होता है, सबसे मैनिपुलेटिव भी। डीसीएफ को कुछ भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है, एंड अगर आपने कभी डीसीएफ पे काम किया तो उसका टर्मिनल वैल्यू लाते हैं। तो अपन मैं सिंपल बता रहा हूं कि आपका कैश फ्लो को डिस्काउंट किया, वो तो सिंपल है, एनपीवी से आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू लाना है 5 साल का या 7 साल का जो भी प्रोजेक्शन, एंड देन आपको टर्मिनल वैल्यू लाना है। वहां आपको ग्रोथ एजम्पशन करना है कि अप टू इनफाइनाइट पीरियड व्हाट विल बी योर ग्रोथ।
तो उसमें अगर सपोज कोई कंपनी का 200 करोड़ वैल्यूएशन आया, 100 करोड़ वैल्यूएशन आया नेट प्रेजेंट वैल्यू का, 100 करोड़ आया टर्म लोन अपना टर्मिनल वैल्यू का, आप अगर टर्मिनल वैल्यू पे ग्रोथ 2% की जगह 3% करोगे तो ये 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ हो जाएगा टर्मिनल। तो DCF is one of the scientific method to value your company, and DCF is one of the most manipulated method in valuation of shares or business values. Yes. So next question, I would like Raman Loya to unmute yourself. मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं क्या? चलेगा सर। तो क्या सबका फेस दिखने को आएगा? हाँ, रमन आपने क्वेश्चन लिखा है कुछ रॉ मटेरियल WIP पे। सर फर्स्ट ईयर के अंदर रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड, इसके वजह से इसका फिगर चेंज हो जाएगा और अकॉर्डिंगली क्रेडिटर भी चेंज होना चाहिए। होगा। हाँ, तो ये चीज मुझे अभी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ना ऐसी नजर नहीं आई, इसलिए मुझे पूछना था। नहीं, ऑटोमेटिक आपने मार्जिन भी चेंज करके देखा, मंथ होल्डिंग भी चेंज करके देखा, ऑटोमेटिक एवरीथिंग विल चेंज। आई कैन शेयर स्क्रीन अगेन एंड शो इट टू यू। एक्चुअली अपन जो फिनिश गुड सेल किए उसके कॉस्ट के रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, जहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट नहीं लिया, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिया है क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट। हाँ, वो तो सी रॉ में फिनिश गुड्स जो है आपका, हमने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट है उसी पे आएगा, सेल्स फिगर पे तो फिनिश गुड्स आएगा नहीं, यू कैन नॉट शो अ प्रॉफिट, तो एक्चुअल कॉस्ट पे फिनिश गुड्स आएगा। बट एक्चुअली वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए आप देख लेना, फॉर्मूला चेक कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट इज द एग्जैक्ट वर्किंग। इसके बाद भी रमन कुछ लगता है तो सर का नंबर हम शेयर कर देंगे, यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट। मुझे ना एक पूछना था, बैंक गारंटी और LC का एलिजिबिलिटी कैसे देखना है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल में कैसे बनाना चाहिए? प्रोजेक्ट फाइनेंस में आएगा नहीं, आपको सेपरेटली बना के देनी पड़ेगी। ओके, ठीक। आपका LC का कैसे होगा? सपोज आपको इंपोर्ट LC चाहिए तो आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल बनाना पड़ेगा, लीड पीरियड कितना है, ऑर्डर प्लेस LC खोलने के बाद कितने दिन में डिस्पैच होगा। सपोज आज ऑर्डर कर रहे हैं आप, 1 महीने बाद डिस्पैच होगा, ट्रांजिट पीरियड 1 महीना है, 2 महीना, तो आपको उस हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालनी पड़ेगी और आपकी कितनी परचेज LC से होने वाली है। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अराइव दैट कि भाई व्हाट इज योर जस्टिफाइड LC लिमिट। एंड बैंक गारंटी में अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, कैपिटल गुड इंडस्ट्री है तो वहां परफॉर्मेंस गारंटी देना पड़ता है। सपोज अपन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जहां भी आप ट्रांसफार्मर सप्लाई करेंगे तो वो बोलेगा परफॉर्मेंस गारंटी चाहिए, तो उसकी आपको जस्टिफाई बनानी पड़ेगी, भाई कितना % कई बार एडवांस मोबिलाइजेशन गारंटी होती है, आप बड़ी कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हो तो आप बोलते हो कि भाई आप गारंटी ले लो बट मेरे को 10% पैसा दे दो एडवांस टू प्रोक्योर मटेरियल डिजाइन ऑल, या 20% 40% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन। मैं इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा था, जो इलेक्ट्रिकल पैनल बनाते हैं शिप के लिए, मरीन के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल बनाते हैं, तो वहां 40% प्रोडक्शन लेवल आते आते वो 40% एडवांस देते हैं, बट ऑल एडवांसेस आर गिवन बाय दीज बिग कॉर्पोरेट्स अगेंस्ट बैंक गारंटी। एंड उनके केस में प्रोडक्शन सप्लाई हो गया तो दे विल पे यू 90%, 10% इज रिटेंशन मनी, बट यू कैन गेट दैट रिटेंशन मनी बाय प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे दिया, पैसा आ गया, कुछ क्लेम आएगा तो देखेंगे। अगर आप मेरे साथ मेरे ही एक क्लाइंट के साथ हादसा हुआ, जब आलोक इंडस्ट्रीज वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ही हैड सप्लाइड सम मटेरियल और उसको उसके सामने रिटेंशन मनी था, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया था सर बैंक गारंटी देके रिटेंशन मनी ले लो, और बाद में आलोक इंडस्ट्रीज बैंकक्रप्ट हो गया, उसने बैंक गारंटी देके रिटेंशन मनी ले लिया, तो उसका रिटेंशन मनी पूरा का पूरा इन करोड्स ऑफ रुपीज he has lost that money by your retention कारण आलोक इंडस्ट्रीज by that time become bankrupt। तो ये आपके क्लाइंट को सुझाव देना चाहिए, रिटेंशन मनी की जगह बेस्ट है आप बैंक से लिमिट करा लो बैंक गारंटी में फिनेंशियल गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी, सो दैट यू प्रोवाइड देम गारंटी एंड एक्चुअल मनी कम, तो यू आर नॉट डिपेंडेंट। कई बार क्या होता है 2 साल 3 साल के लिए आप गारंटी देते हो, 2 साल 3 साल में क्या होने वाला है, कौन मैनेजमेंट चेंज होने वाला है, कौन कैसा करने वाला, वो वैगरीज में रहे ही नहीं। रिटेंशन मनी के लिए बैंक गारंटी दिया, परफॉर्मेंस गारंटी, और उनसे पूरा का पूरा पैसा ले लिया। यस सर, और एक क्वेश्चन था सर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में अक्सर ना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट विथहेल्ड करती है डिपार्टमेंट, उसको लेटर कंसीडर कोई बैंक करती है कोई नहीं करती है, तो इसके लिए कोई सुझाव?
नहीं, सुझाव नहीं, आपको बैंक आपका अगर जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है रिटेंशन मनी में, एंड इट इज एडवाइज्ड बाय मी कि आप हमेशा रिटेंशन मनी का गारंटी देके आप पैसा कैश फ्लो तो ले लीजिए अपने सिस्टम में, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ और ज्यादा जरूरी है, अनलेस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट को आप सप्लाई करो उनका वो पॉलिसी नहीं। अभी रेलवे में मेरा एक क्लाइंट रेलवे में काम करता है, उनका सिस्टम ये है कि आपको ज्वाइंट एफडीआर रखना पड़ता है, उनका सिस्टम ये है, रेलवे प्लस कंपनी दोनों का सिग्नेचर मिला के ज्वाइंट एफडीआर होगा। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल का रिटेंशन पीरियड गारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा, उस दिन एफडी मैच्योर होकर आपके पास आ जाएगी। वहां बैंक गारंटी का कंसेप्ट नहीं है, जहां कंसेप्ट है वहां मस्ट यू शुड टेक बेनिफिट। Okay, thank you, sir. Yes. Next question is, sir, in CMA data, how to arrive at maximum eligible finance? वो तो सिंपल है, देखिए मैं बताता हूँ। सीएमए डेटा में ऐसा होता है कि जितना आपने लिमिट प्रपोज किया, जो भी लिमिट प्रपोज किया, सीएमए डेटा तो सब बैंक का फॉर्मेट है अपना अपना, और ऑलमोस्ट सब सिमिलर फॉर्मेट है, एंड लाइन मेथड 2 से आपका वर्किंग कैपिटल 2 निकलता है। आपका अगर करंट रेशियो 1.30 आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है 1.30 प्लस करंट रेशियो और आएगा तो जो लिमिट प्रपोज करोगे वही मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपके सीएमए डेटा में कुछ ना कुछ मिस्टेक। सिंपल है, जब करंट एसेट तो अपना नेटवर्किंग एसेट का 25% जब अपने को मार्जिन देनी है तो एनी रेशियो 1.30 प्लस करंट रेशियो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम परमिसेबल फाइनेंस सेम एज लिमिट प्रपोज्ड आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपके सीएमए डेटा में कुछ गलती है। So next question is, nowadays nationalized bank don't add quasi capital, quasi equity into net worth while calculating TOL, TNW. Then नहीं, how नहीं। should we convince them? Else they ask for affidavit not to repay the unsecured loan till total loan amount repayment period, total repayment period. एकदम परफेक्ट जायज क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो ये है कि अनसिक्योर्ड लोन जो प्रोमोटर्स ग्रुप में आ रहा है उसको 90% ऑफ द बैंक एक्सेप्ट एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी टू अराइव एट TOL, TNW। आजकल डेट इक्विटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है TOL, TNW रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो जिसको बोलते हैं। जनरली वो 2.5 से ऊपर अलाउ नहीं करता। जैसे अपन डेट इक्विटी बोलते हैं 2:1 इज स्टैंडर्ड, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, एंड ऐसी कैपिटल गियरिंग रेशियो जनरली बैंक बोलता है 2.5 के ऊपर नहीं चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन जो ये है कि वो एक क्लॉज जरूर डालेंगे कि देयर कैन नॉट बी रीपेमेंट, एनी रीपेमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टर्म लोन विदाउट बैंक कंसेंट। तो ठीक है ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कल अगर आपका बिजनेस अच्छा कमाया है, कैश फ्लो पड़ा है, तो उनको बोलेंगे। कई बार क्या होती है, उनका कंडीशन है, मेरे एक केस में अब भी हुआ है, आई कैन नेम द कंपनी, जिसमें मेरे पास टर्म लोन था और हमारा कैश फ्लो बहुत अच्छा था। तो मैंने बोला सर या तो हमको विड्रॉ करने दो हमारा क्वासी इक्विटी, या फिर आपका टर्म लोन खत्म कर लो। तो बैंक बोला नहीं नहीं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, हमारे बुक में कुछ एक्सपोजर रहने दो, आपको जरूरत पड़ी तो अनसिक्योर्ड पोर्शन आप उठा लो। तो बैंक परमिशन भी दे देती है, कारण बैंक का भी नुकसान है ना। अल्टीमेटली बैंक पैसा आपको दिया है टू अर्न इंटरेस्ट। इफ यू प्रीपे, या उसका वर्किंग कैपिटल लिमिट आपका 40, उस क्लाइंट का 40 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लिमिट था और मेरे पास 10 करोड़ का अनसिक्योर्ड इक्विटी मतलब क्वासी इक्विटी पड़े थे, एंड वी वर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो हमने बैंक को अप्रोच किया, या तो हमको विड्रॉ करने दो, हमको दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने, या वी विल रिपे योर वर्किंग कैपिटल लिमिट नेक्स्ट ईयर 30 करोड़ की जगह आप 20 करोड़ कर देना। तो बैंक बोला नहीं नहीं यार, आपको ले जाना है तो ले जाओ, हमारा लिमिट तो उतना ही रखो, बिकॉज वी आर प्रूवन परफॉर्मर फॉर द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कैश क्रेडिट फाइनेंस DSR इज कैलकुलेटेड और व्हाट? आई थिंक करंट रेशियो कैलकुलेशन देखना चाहिए, आप बता सकते हैं सर। DSCR रेशियो में मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं बैठा। मुझे ये मालूम है, साबू जी, बनीता साबू मैम, थैंक यू। मुझे ये मालूम है कि DSCR रेशियो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ कुछ बैंक के या कुछ कुछ कंसल्टेंट इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को भी ऐड करते हैं। मेरा कहना है कि आप टर्म लोन इंटरेस्ट ही ऐड कीजिए, कैश एक्रूरल्स एडेड इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, और नीचे रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन एंड कैश इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ये ऐड करके आप DSCR निकालिए। कई बैंक बोलती है नहीं आप इंटरेस्ट पूरा ले लीजिए, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन मिला के DSCR निकाल लीजिए, बट एक्चुअली राइट इज टर्म लोन इंटरेस्ट शुड बी एडेड बैक विद कैश प्रॉफिट,
बट अगर कोई बैंक बोलती है तो करके दे दीजिए, कुछ फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, उनका क्वेश्चन शायद ऐसा है कि कैश क्रेडिट फाइनेंस अगर लेते हैं, इन दैट केस वेयर डीएससी, वेदर डीएससीआर इज रिक्वायर्ड। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। डीएससीआर ओनली फॉर टर्म लोन। यस सर मेरा एक और क्वेश्चन था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नॉर्मली एसबीआई में मेरे क्लाइंट के केस में ऐसे किया था कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा टीओएल टीएनडब्ल्यू से रिलेटेड, उनको सजेस्ट किया गया कि नहीं, आपका ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल दोनों भी आप बढ़ाओ, पर क्लाइंट रेडी नहीं थे क्योंकि ज्यादा लगने वाली थी। नहीं, ये तो क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन, सी बैंक तो चाहेगा ही ना हाँ कि सारा का सारा कैपिटल में ही दिखावे। हाँ अगर एग्जैक्टली आप सर। उनका, हाँ बैंक तो यही चाहेगी ना, ये तो क्या है, नेगोशिएशन स्किल है। Yes, yes. देयर योर रोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यस कि सर। भाई बैंक को नेगोशिएशन करो, मेरा डेट इक्विटी रेशियो कोई टीएलडब्ल्यू कोई 2.5 तो है नहीं, समझ लो अच्छा इक्विटी ला रहा हूँ, तो उसको बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत मेरे को बायो क्वासी इक्विटी रहने दो, मान जाता है बैंक, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता। आप कहाँ नहीं मानेगा, जहां आपका डेट इक्विटी टीओएल टीएनडब्ल्यू 2.5 के आसपास है, ऊपर है। 250 260 270, वो बोलेगा इतना कैपिटल गियरिंग रेशियो में आई विल नॉट अलाउ यू टू क्वासी कैपिटल। बट आपका समझ लो 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट यू आर टेकिंग फंड, मतलब 1:1 डेट इक्विटी है, वहां अगर आप क्वासी कैपिटल रखेंगे तो बैंक मना कर ही नहीं सकता। बैंक बोलेगा जरूर कि पूरा का पूरा कैपिटल में रखो, बट यू कैन कन्विंस बैंक। मैंने एसबीआई से अब भी लिया सैंक्शन, जहां टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोमोटर का 15 करोड़ था, 5 करोड़ हमने क्वासी कैपिटल लिया, 10 करोड़ कैपिटल लिया। एसबीआई हैज ट्रीटेड दैट 5 करोड़ आल्सो एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी एंड दे हैव सैंक्शनड अस। ओके सर, थैंक यू। All questions are over, sir. I would like to thank शिव भगवान सर कि आप आए, आपने इतना अच्छे से प्रैक्टिकली सर समझाया, जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें थी, जिसमें वर्ड फाइल में डिस्क्रिप्शन था, पीपीटी में आप बता रहे थे, एक्सेल में एक्चुअल बता रहे थे। आपके जो डायनेमिक्स मुझे लगता है काफी लोगों को अच्छे लगे, जिसमें ऑटोमेटेड चेंजेस हो रहे थे, जो आपने बताया कि एक फिगर अगर चेंज करो तो उसका इम्पैक्ट पूरे शीट में आ रहा था। So I would like to thank Shiv Bhagwan sir for coming and sharing his knowledge, and I would thank all the participants जिन्होंने ज्वाइन किया, सर से क्वेश्चन आंसर पूछे, एंड ये सेशन को एकदम इंटरैक्टिव बनाया। थैंक यू सर। Before we close, my sincere thanks to both the branches and office bearers. पंकज जी सोनी तब से सुन रहे हैं, प्रवीण मांगट जी, देसाडा जी, सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर यू। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का लाइव डेमो एंड डायनामिक प्रोजेक्ट फाइनेंशियल्स, एक्चुअली टॉपिक आपने दिया था प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर, बट उसके ऊपर क्या होता है, देयर आर एन नंबर ऑफ स्पीकर्स, यू आल्सो अवेयर ऑफ। जब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो चीज है ना, ये अपने बिगिनर्स के लिए, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में एंटर करना चाहता है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई आई मॉडिफाइड द सब्जेक्ट एंड गिवन दिस प्रेजेंटेशन। होप आई, माय सिंसियर अपॉलॉजी, आई वाज नॉट स्टिक टू द सब्जेक्ट व्हिच वाज गिवन। नहीं सर, ये सब्जेक्ट काफी अच्छा था, अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ मेंबर्स इज इम्पोर्टेंट। यस। अभी प्रवीण, मैं भी उतर जाता हूँ प्रोजेक्ट फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम वेलकम। चलेगा सर, थैंक्स अ लॉट थैंक यू टू एवरीवन। औरंगाबाद के साथ मेरा बहुत कनेक्शन था। ड्यूरिंग माय आर्टिकल 6 पीरियड आई यूज्ड टू स्टे 3 months इन पैठन। लोगों को औरंगाबाद रुकते थे मेरा टीम, बट मैं बोलता था यार मेरे को तो पैठन में रुकने दो, मेरे को शहर में नहीं रुकना है। औरंगाबाद में 2 दिन रुक के मैं पैठन चला जाता था। राइट, यस, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। मेरे का यूट्यूब दे देना प्रवीण भाई। यस सर, श्योर, यूट्यूब लिंक भेज देना। यस श्योर। और मैं आपको मेल आईडी मेरे को अभी प्रोवाइड कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं ये इसको जिप फाइल बना के आपको भेज देता हूँ। इमीडिएट सर कर देंगे। हाँ, इमीडिएटली मैं मेल कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।